جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل ممبرس. جی آج ہم اس پلیٹ فارم پہ ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن ایک ایسا ادارہ ہے جس کا مقصد بلا تفریق انسانیت کی خدمت کرنا ہے. انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کی مختلف مقاصد ہیں جن میں کیریئر کاؤنسلنگ، ٹیچر ٹریننگ، پبلک اسپیکنگ، اسٹوڈنٹ فورم اور بہت سے دیگر پروجیکٹ شامل ہیں. اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن میں مختلف سیشنز کروائے جاتے ہیں جس میں پاکستان بھر کے مختلف علاقوں سے بہترین اسپیکرز کو مدعو کیا جاتا ہے. اسی سلسلے میں آج کے ہمارے جو مہمان پرسنالٹی ہیں وہ ہیں جناب امتیاز علی رن صاحب. آپ کا تعلق ضلع نوشہر و فیروز سندھ سے ہے. آپ موٹیویشنل اسپیکر، ٹرینر اور ایک لکھاری ہیں. آپ ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں. آپ کی 2 کتاب منظر عام پر آ چکی ہیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. سہیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمارے بہت ہی قابل عزت قابل احترام سر کاشم علی شاہ صاحب کی بک. ان میں سے سر آپ سے تفصیل کے ساتھ ہم جاننا چاہیں گے. آپ اپنے الفاظ میں وضاحت کے ساتھ ہمیں بتائیں گے کہ وہ بک کیسے شائع ہو اور ان کا مقصد پورا جو انہوں نے ایکچولی اس میں بتایا ہے نا، اس کا آپ نے پورا مقصد سر ہمیں بتانا ہے. بڑی منزل کا جی سر مسافر. انشاءاللہ تعالی. بڑی منزل کا مسافر. سر دیکھیں نا، اس میں بہت گہری بات کی گئی ہے کہ بڑی منزل کا مسافر. ایک لائن کے اندر پوری انسان کی زندگی کو بیان کیا گیا کہ ایکچولی انسان آتا کہاں ہے اور آتا کیوں ہے، انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے. تو سر جی کائنڈلی سر. آپ بتائیے کہ بڑی منزل کے مسافر ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس کو ہم سر کیسے خود کو ایک بڑی منزل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. جی اسکرین شیئر کر دیں گے میں تاکہ اپنی یہاں سے سلائڈیں کچھ شیئر کر سکوں تو ہم سیشن کو آگے چلاتے ہیں. جی سر اسکرین شیئر ہو گئی آپ. جی بہت شکریہ سہیل صاحب آپ کی محبتوں کا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ابھی جو بھی لائیو ہیں میرے ساتھ زوم پہ. خاص طور پہ سہیل صاحب آپ کا اور مس ماریا نوشین صاحبہ کا، سمین یوسفہ صاحبہ کا، اور جو بھی آپ کی پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کے حوالے سے جو سر کاشف شہزاد کے پیج سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. پھر مزید اس حوالے سے یہ پروگرام آپ کرتے رہتے ہیں تو میں نے مزید ایکسپلور کیا کہ ماشاءاللہ آپ کے یہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا رہتا ہے. تو آج جو ہمارا موضوع ہے بڑی منزل کا مسافر، یہ ایک سر قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کا نام ہے بڑی منزل کا مسافر. اب جو بڑی منزل کا مسافر ہے اس کا اوور ویو میں آپ کو مختصر دے دوں کہ اس کے 2 پارٹس ہیں. بڑی منزل کا مسافر، بڑی منزل کا مسافر بننے سے پہلے اور بڑی منزل کا مسافر بننے کے بعد. ٹھیک ہے؟ جی سر سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی سر کلیئر ہے. جی تو اب بڑی منزل کا مسافر یہ جو ٹرم سر یوز کرتے ہیں، سر قاسم علی شاہ صاحب نے اپنی پوری کتاب لکھی ہے. دراصل یہ واصف رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر میں آپ کے سامنے سب سے پہلے پارٹ کو سامنے رکھوں گا. وہ یہ کہ جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں، جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، خود کو پہچانے. جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ خود کو پہچاننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خود کی سیلف ڈسکوری کرتے ہیں. تو وہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس
का छोटी सी मैं मिसाल एक वाक्य से समझाऊंगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मसनवी में एक वाक्या लिखा है। वो वाक्या कुछ यूं है कि एक शेर का बच्चा था जो छोटा था, तो उस शेरों के झुंड से अलग होकर भेड़ों के साथ रहने लगा। फिर उसकी आदतें, उसका उठना, उसका बैठना, सब कुछ उस भेड़ों की तरह हो गया। वो सब कुछ एक मर्तबा क्या होता है कि वहां से एक शेर का गुजर होना होता है, तो वो शेर देखता है कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के साथ क्या कर रहा है। तो वो शेर, जो समझदार शेर था, जो बड़ा था, जो अक्लमंद था, वो उसके पास गया, उसको वहां से निकाल कर लाया और उसको बताया कि देखो तुम शेर के बच्चे भेड़ों में क्या कर रहे हो। कि नहीं मैं शेर नहीं, मैं भेड़ हूं। क्योंकि उनके साथ रह रह कर उसकी आदतें उन भेड़ों वाली बन गई, उनके साथ रह रह कर उसके जो तौर तरीके अतवार सारे कुछ उस वाले बन गए। तो उस शेर ने कहा, जो बड़ा शेर था, अक्लमंद शेर था, अब उसने सोचा कि इसने अपनी असलियत खो दी है, इसको पता ही नहीं है कि ये शेर का बच्चा है, लेकिन इसको पता ही नहीं है। तो अब उधर उस शेर ने क्या किया कि उसने उधर भेड़ों पे हमला करके एयर को मारा और उसके सामने खाया। जैसे ये मंजर उस छोटे शेर ने देखा, तो उसके अंदर का जो बच्चा शेर था आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगा। फिर मजीद उस बड़े शेर ने, जो अक्लमंद शेर था, उसको लेके गया एक नदी पर। नदी पर जब लेके गया, पानी में अपना साया दिखाया कि देखो तुम्हारी शक्ल और मेरी शक्ल एक जैसी है, तो अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो वो तब कहता है कि मैं एक शेर का बच्चा हूं, वाकई मुझे पता ही नहीं था, मैं असलियत खो के बैठा कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं शेर का बच्चा हूं, सिर्फ इस वजह से कि मैं जिस एनवायरनमेंट में रहा, जिस माहौल में रहा, उस माहौल ने मुझे अपना बना लिया और मैं अपने आप को खो बैठा। जो मेरे अंदर सलाहियत थी, जो ताकत थी, असल में जो मैं शेर था उसको पहचान नहीं पाया। अब मैंने अपने आप को पहचान लिया। तो यहाँ पर इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने आप से ये सवाल किया कि हमें क्यों पैदा किया गया है, हमारी क्रिएशन का मकसद क्या है, आखिर ये जो हम जिंदा है, मैं अब तक जो जिंदा हूं, क्यों जिंदा हूं। वो इसलिए जिंदा हूं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई असाइनमेंट रखा है, मेरे लिए कोई टारगेट रखा है, जिसको मैं मुकम्मल कर लूंगा तो उसके बाद उठा दिया जाऊंगा। अगर आज तक अभी हम सांस ले रहे हैं, इसका मकसद है कि इस दुनिया में हमारा कोई ना कोई मकसद जरूर है, कोई ना कोई ऐसी असाइनमेंट जरूर है जिसको अभी मुकम्मल करना बाकी है। तो अब ये सफर कैसे आगे बढ़ेगा? ये सफर इस तरह आगे बढ़ेगा, हमें चाहिए कि हम खुद को पहचाने। और खुद को कैसे पहचानेंगे? खुद को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप से ये सवाल करना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तो आगे चलते हैं। वो ये कि हमारी जिंदगी का जो पर्पस ऑफ लाइफ है, ये ऐसा सवाल है जो हर बड़ी मंजिल के मुसाफिर ने अपने आप से पूछा। जो भी बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनता है तो उन्होंने अपनी लाइफ में ये क्वेश्चन जरूर ऐड किया था, क्योंकि इसके बगैर सफर नामुमकिन है। मुझे आप बताएं, सबसे मेरा सवाल है कि आप कभी भी किसी सफर पर निकलते हैं, सफर से पहले क्या कुछ तैयारी नहीं करते? क्या उससे पहले कुछ ना कुछ आप प्लानिंग नहीं बनाते? मुझे सफर पे जाना है, ये चीज लेनी है, ये चीज लेनी है, डिसाइड करते हैं, डेट डिसाइड करते हैं, तारीख डिसाइड करते हैं, दिन डिसाइड करते हैं, महीना डिसाइड करते हैं, अपनी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं कि किस तरफ जाना है, ये पूरी प्लानिंग करते हैं। तो ठीक इसी तरह जो बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं, अपनी सफर पर रवाना होने से पहले वो अपने आप को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यानी उस मंजिल पर चलने से पहले वो खुद को देखते हैं कि मैं अगर चलूं तो मुझे किस तरफ जाना है, किस जगह जाना है। इस मिसाल को समझाने के लिए ये जो सवाल है कि मुझे खुद को पहचानना है, एक छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा। वो ये कि हम समझ रहे होते हैं कि ये जो
सेल्फ डिस्कवरी है, जो ये सवाल उठाते हैं, जो बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं, ये जो खुद से सवाल उठाते हैं, ये जो उठाते हैं, क्या इसका ताल्लुक बड़ी उम्र से है, क्या इसका ताल्लुक एजुकेटेड होने से है, या इसका ताल्लुक हम अपना जो काम शुरू करते हैं उससे है? ये सारे मिथ हैं, मिथ समझते हैं ना। माला देवी जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो ऐसी कहानियां होती हैं जो हाथ की बनाई होती हैं, लेकिन जो बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं ना वो उम्र के, उसके लिए उम्र का भी तकाजा नहीं होता, ना वो बड़ी कोई एजुकेशन चाहिए, ना एमफिल, ना पीएचडी, ना कोई उसके लिए आपको बड़ा कोई काम करना है। ये जो सवाल है अपने आप से जो हम करते हैं कि हमारी लाइफ का मकसद क्या है, हमें किस तरफ जाना है, क्योंकि मैं इसको आपके हिसाब से लेके चलूंगा वो इसलिए कि जो भी यहाँ पर हैं, यंग हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो आपने देखो ना अभी जो आप पढ़ रहे हो सकता है किसी के जिंदगी में ये उसके माइंड क्लियर ही ना हो, उसका विजन क्लियर ही ना हो कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, ये क्लियर ही नहीं होगा तो वो बड़ी मंजिल का मुसाफिर नहीं बन सकेगा। वो बड़ी मंजिल का मुसाफिर क्यों नहीं बन सकेगा? उससे पहले उसको डिसाइड करना पड़ेगा अपना मैदान जंग, मुझे किस जगह पर अब सर्व करना है अपनी, वो चाहे वो आपकी फील्ड हो सकती है, आपका कैरियर हो सकता है। आप सोच समझ कर इस सवाल को अपने पल्ले बांधना होगा। कहते हैं कि वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया, आके कहने लगा कि या हजरता, हमें ये बताइए कि हम खुद को कैसे पहचाने, खुद को कैसे जाने कि हमारी लाइफ का मकसद क्या है। तो हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस शख्स को जवाब दिया कि ये सवाल अपने पास संभाल के रखना और मुझसे कुछ दिनों के बाद पूछ लेना। उस वक्त जवाब नहीं दिया। तो कहते हैं कि 1-1.5 हफ्ता गुजर गया, वो बंदा हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के सामने आया और हजरत वासिफ अली वासिफ ने उनको याद दिला करवाया कि बताएं आपका सवाल क्या था। तो वो शख्स कहने लगे हजरत वासिफ अली वासिफ को, मैं सवाल तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा जवाब कमाल का दिया कि हमारे लिए उसमें बड़ी ही एक इंस्पिरेशन है कि जिस सवाल को आप 1 हफ्ता संभाल कर नहीं रखते तो कुदरत भी उसका जवाब आपको कभी नहीं देगी, कुदरत भी उसका जवाब आपको कभी नहीं देगी, क्योंकि आपने 1 हफ्ते के लिए संभाल के नहीं रखा अपने सवाल को। फिर इधर एक छोटी सी बात मैं ऐड करता चलूं। एक शख्स को शौक हुआ कि मैं अपने मुर्शिद के पास जाऊं और उनसे इसमें आज़म हासिल करूं। ये एक अल्लाह वालों का तरीक़ेकार होता है, बुजुर्गों का तरीक़ेकार होता है। वो एक जिक्र देते हैं, जिक्र से पहले उनसे कोई ना कोई ट्रेनिंग करवाई जाती है, उनको टेस्ट किया जाता है, उनको चेक किया जाता है कि ये इस जिक्र को संभाल सकेंगे या नहीं संभाल सकेंगे। तो उसने कहा कि जी हाँ बेटा, आपको इसमें आज़म मिलेगा, ये अल्लाह का जिक्र मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मेरा सवाल है आपसे, छोटी सी एक बात है वो पूरी करनी होगी। क्या? कि ये छोटा सा डब्बा है, इसको संभाल कर रखो और कल मेरे पास वापस लेके आना। क्या कहा? ये डब्बा कल मेरे पास वापस लेके आना। वो बंदा गया, घर पे गया तो उस डब्बे से आवाज आ रही थी, टुक 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 की, कोई खुड़ खुड़ की। तो उसके अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ दिल में कि इसके अंदर है क्या, मुर्शिद ने मना किया था इसको खोलना नहीं है। तो अब उससे रहा नहीं गया, रात हो गई, तो उसने कहा चलो खोल के देखता हूँ इसमें क्या है। उस डब्बे को जब खोला, डब्बे के अंदर एक चूहा था। जैसे ही डब्बे को खोला वो चूहा भाग गया। अगले दिन मुर्शिद के पास वो डब्बा लेकर आया और मुर्शिद ने कहा जी भाई वो डब्बा लेके आया हमारा। जी कि हुजूर मैंने गलती कर दी, आपने मना किया था इसको खोलना नहीं। कि सब्र नहीं हुआ ना? नहीं हजरत, हमसे सब्र नहीं हो सका, मैंने खोल दिया और उससे चूहा निकल गया और वो भाग गया। तो उधर बड़ा खूबसूरत जवाब उसके बुजुर्ग ने दिया, कहने लगा कि तुमसे संभाला एक चूहा नहीं जाता, तुम इसमें आजम संभाल लोगे।
तो देखा जाए कि जो लोग इस सवाल को कैरी नहीं करते, खुद को जानते नहीं कि मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, मेरे अंदर क्या सलाहियतें हैं, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कौन सा पैशन रखा है, उसको जो ढूंढते नहीं है ना, वो फिर इधर उधर टक्करें मार रहे होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी कौन सा कोर्स करेंगे, कभी किस फील्ड में जाएंगे। 16-16 साल पढ़ लेते हैं नौजवान एजुकेशन अपनी, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें बड़ी मंजिल का मुसाफिर कैसे बनना है, तो उनको समझ में नहीं आती। तो इधर हम गलती ये करते हैं कि हम समझ रहे होते हैं कि हमारा जो ये जो लाइफ का सवाल है कि हमें जिंदगी में क्या करना होता है, तो हम क्या करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि वो लिसन अदर्स फॉर आवर सेल्फ डिस्कवरी, दूसरे से पूछते हैं कि हजरता हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सवाल हमारा अपना होता है, हम दूसरे से पूछ रहे होते हैं। और कुछ मामला ऐसे भी हो जाते हैं, कुछ फैमिली का भी जोर होता है। अगर कोई फैमिली में डॉक्टर है तो घर वाले कहते हैं भाई इसको डॉक्टर बनना चाहिए, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, हमें और कोई फील्डें नजर ही नहीं आ रही होती। अब आपसे एक सवाल है कि मुझे बताएं कि आपकी नजर में कितनी फील्डें हो सकती हैं, कोई कमेंट में बताएगा। ओवरऑल अभी तक रिसर्च के मुताबिक कितनी फील्डें डिस्कवर हो चुके हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपकी नवाजिश होगी कि किस किस को पता है कि अभी तक कितनी फील्डें डिस्कवर हो गई हैं। जी जी सोहेल साहब, कुछ ज़हन में है? जी सर, बहुत फील्ड्स हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं। इसी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस फील्ड में जाया जाए, तो उनको अपना पता ही नहीं होता, पैशन का नहीं पता चलता। अच्छा सर, कासिम अली शाह साहब की किताब के मुताबिक जो अपनी तलाश है, और उसके साथ साथ सर ने एक और किताब लिखी है इंसाइक्लोपीडिया कैरियर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी नजर से गुजरी होगी। इस किताब में कमो पेश 400 से ज्यादा शोबों से रिलेटेड अब तक रिसर्च के मुताबिक शोबे आ चुके हैं, 400 से ज्यादा इस किताब के तहत। तो ये इंसाइक्लोपीडिया जो कासिम अली शाह फाउंडेशन ने लिखा है, इसमें 400 से ज्यादा फील्ड्स हैं, लेकिन हमें गिनी चुनी चंद ही फील्ड्स का पता होता है, जो या तो इंजीनियरिंग की फील्ड होती है या डॉक्टरी की, या उसके अलावा लॉयर्स वगैरह की, उसके अलावा पता ही नहीं है। तो अभी तक रिसर्च के मुताबिक 422 फील्ड्स डिस्कवर हो चुकी होती हैं। और हम मशवरा कर सकते हैं अपने वालिदैन से, अपने असातिज़ा से, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, खुद से भी सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इसी प्रोग्राम के अंदर रहते हुए ये सारा जो है ना, इंशाल्लाह ताला ये जो आपका दिमाग में जो सवालात उभर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, हम दूसरों की सुनते हैं, कभी अपने दिल की भी सुन लिया करते हैं, कभी अपने दिल की भी सुना करें। दिल की कैसे सुनी जाती है? वो इस तरह से सुनी जाती है, आप अब तक जो भी काम कर रहे हैं, आपने अब तक जो भी काम किया है, मुझे आप ये बताएं, क्या आप अपने उस जो भी अब तक काम किया उससे सेटिस्फाई हैं, मुत्तमिन हैं कि जो आपने काम किया वो आपने सही किया, आप मुत्तमिन हैं? जी, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप जिस भी फील्ड है उससे कितने % मुतमईन है। सोहेल साहब, आप कमेंट्स जरूर पढ़ते जाइएगा, जो हमारे लाइव है हमारे सेशन में, हम बताते जाइएगा। जी इधर अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है? उसमें फरहान होता है, उसका क्या शौक होता है? उसका शौक होता है फोटोग्राफी करना। और उसका दोस्त होता है रेंचो, जो आपने देखा होगा, वो आखिरी टाइम पर जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होता है तो मना कर देते हैं उसके, देखिए इंटरव्यू करने के लिए नहीं जा, अपने वालिदैन को राजी कर, उनको बता कि तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हारा शौक क्या है। तो अपने अब्बा के पास जाते हैं तो वो उनको मुतमिन करते हैं कि अब्बा मुझे इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती, मेरे ऊपर से गुजर रही होती है। तो उसका पैशन होता है नेचर को कैप्चर करना, नेचर की जो अलग अलग नजारे हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ट्रीज
मूवीज हैं, चाहे वो पहाड़ है, वो खूबसूरत तस्वीरें निकालते हैं, उसका वो पैशन होता है। तो हमें देखना चाहिए क्या हम अपने पैशन के मुताबिक क्या कहते हैं अपने फील्ड में जाते हैं, उसको चूज करते हैं 90%। जी, लारेब ने मैसेज किया है कि 90% और उसके साथ साथ और भी कर रहे हैं। ठीक है, जबरदस्त, बेहतरीन। तो अब आगे चलते हैं। वो ये कि हम जब देखते हैं खुद को कि हम कहाँ पे खड़े हुए, हमारा पैशन क्या है, क्या हम बड़ी मंजिल के मुसाफिर वाला जो ये जो सवाल है खुद से कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम दूसरों की सुनते हैं, जो दूसरे कहते हैं हमें फैमिली में, घर में, इधर उधर, तो हम उनकी जब बात सुनते हैं तो हमें फिर वो मजबूरन उनकी बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि सब कहते हैं कि भाई ये अच्छा कैरियर है। कासिम अली शाह साहब से किसी ने सवाल किया था कि सर सबसे अच्छा कैरियर कौन सा है, तो सर कासिम अली शाह साहब ने फरमाया था कि देखो आप जिस भी कैरियर में हो उसमें 100% आप मेहनत करो, वही कैरियर आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, जिसमें आपको मोहब्बत हो और दिल से और शौक से आप जिस फील्ड में गए हो आपको पता होना चाहिए। अब आपके सामने ये स्लाइड आई है जिसका कुछ यूं लिखा हुआ है, योर इनर कंपास ऑलवेज गिव यू अ डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपके दिल के अंदर, आपकी तबीयत में एक बड़ी कमाल की चीज रखी है। उस कमाल की चीज का नाम है बोरियत। उस कमाल की चीज का नाम है बोरियत। जी हाँ, बोरियत के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरह भी काम कर रहे हैं, अगर वो काम आपको मजा नहीं दे रहा है तो आपको बोरियत अंदर से खुद ब खुद आवाज आ रही होती है कि आप इस काम के लिए नहीं बने हैं। जब भी आपको किसी काम से बोरियत होने लगे, यकीन जानिए कि ये निशानी है कि आप उस काम के लिए नहीं बने हैं। तो ये अंदर का जो कंपास है, अंदर आपका जो दिल है, अंदर आपका जो शौक है, वो आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि आप इस काम के लिए नहीं बने हैं। लेकिन आपको बताता चलूं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि सेल्फ डिस्कवरी में हम समझ रहे होते हैं कि शायद हम जब बड़ी उम्र के हो जाएंगे तो फिर ही हम इस क्वेश्चन को उठाएंगे और आगे शायद हमारे पास ज्यादा दौलत आ जाएगी तो ही हो सकेगा, या ज्यादा पढ़ लेंगे। तो ये जो तीनों चीजें हैं, एज, मनी, एजुकेशन, ये कोई भी मैटर नहीं करती सेल्फ डिस्कवरी के लिए। कोई भी आपकी एज कुछ भी है, क्या भी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, आपको मैं अगर इधर छोटी सी एक एक्टिविटी के हवाले से बता दूं, आप घर पे भी करके देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं छोटे बच्चों को भी आप पहचान लेंगे कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या सलाहियतें हैं। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखा हूं। किस तरह, अगर आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे जरूर होंगे, 3-4 बच्चों को ले और उनको कहें कि भाई आ जाओ गेम खेलते हैं, और उनको एक ग्रुप बनाए, उन बच्चों को छोड़ दे और उनको कहें कि ये यूं गेम खेलना है, अब आप उस तरफ जाओ और स्टार्ट करो। उनमें आप एक बच्चा ऐसा देखेंगे जो सबको गाइड कर रहा होगा, बता रहा होगा कि आप यूं करो, आप यूं करो। इसका मतलब ये है कि 20 से 25 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज हैं, इस बच्चे के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज हैं। क्यों? कि वो सबको मिलाकर और गाइड कर रहा होता। मैं अगर आपसे भी सवाल करूं, जो आप यहाँ अवेलेबल हैं, कि आपके ग्रुप में, आप स्कूल में थे या कॉलेज में आया, आप यूनिवर्सिटी में पढ़े, आपके यहाँ भी कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा जिसके अंदर अलग अलग क्वालिटीज होंगी। मिसाल दूं कैसे, कि अगर मैं नाम लूं कि भाई आपकी क्लास में का कोई ऐसा बच्चा था जो बहुत अच्छा गाता था, तो आपके माइंड में, आपके ज़हन में एक बच्चा जरूर आएगा, या एक कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची जरूर आएगी जिसकी आवाज बड़ी प्यारी थी, जिसका गाना बड़ा अच्छा था, जो बहुत अच्छे अंदाज से गा सकता था। तो ठीक इसी तरह हमें वो लोग क्यों याद आ जाते हैं? वो इसलिए याद आ जाते हैं कि उनके माइंड में जो हमारी तस्वीर बन गई, इसलिए बन गई कि अल्लाह ने उनको उस टैलेंट से नवाजा था, इसीलिए वो हमें याद आ गए। तो हो सकता है मैं आपको भी सामने रखते हुए, हमारी बहुत सारी बहनें हैं
जो यहाँ पे सुन रही हैं, मैं उनको भी बताता चलूं। मैं कहता हूँ कि घर पे जो चाय भी बनाते हैं ये भी कमाल होता है, ये भी एक टैलेंट होता है चाय बनाना। क्यों कि घर पे एक बंदा ऐसा होता है कि उसकी चाय पसंद होती है, उसके अलावा कोई और बना लेता है ना, कहते हैं जा दूर कर, हमें ये पसंद नहीं है। ये क्या है, ये खूबी है, ये छोटी छोटी खूबियां हैं जो इंसान को बताती हैं कि अच्छा मेरे अंदर ये भी है, ये भी है। जिस इंसान को अपनी खूबियां और खामियां पता चल जाए ना, तो वो फिर उस सफर पर गामजन हो जाता है। अब जो कंडीशन थी वो तो खत्म हो गई। क्या कंडीशन है? द कंडीशंस आर योर ओन विल एंड सिंसियरिटी। अब ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर सवाल जचता है कि कंडीशन सर सिर्फ और सिर्फ आपकी रजामंदी, आपकी विल, आपकी सिंसियरिटी, आपकी अगर सच्चाई है कि कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आप अगर बड़ी मंजिल के मुसाफिर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपकी विल है और आपकी सिंसियरिटी है, सच्चाई है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करूंगा कि जिस बंदे के अंदर ये तमन्ना होती है कि मैं कुछ हासिल करूं, कुछ बनूं, बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनूं, तो उसको पहले पहले कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, थोड़ा सा ना खुद को कुर्बान करना पड़ता है। फिर वो कुर्बान किस सवाल से करना पड़ता है वो इस वाक्य से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मैंने एक पहला वाक्य बताया था, एक बुजुर्ग के पास उसके मुरीद आ गए, ठीक इसी तरह एक दूसरा वाक्य है लेकिन एक अलग एंगल से है। उसके पास भी आ गया कि हजरत मुझे भी अल्लाह का जिक्र चाहिए, ये इसमें जात है, ये चाहिए। तो उस बुजुर्ग ने कहा हाँ बेटा ये मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। कि कौन सा काम हजरत करना पड़ेगा? कि काम ये है बेटा कि फला इलाके में एक फूल पैदा होता है, उस फूल का मुझे अर्क चाहिए। कि हजरत ठीक है मैं जाता हूँ ले आता हूँ, कोई मसला नहीं। ये पुराने जमाने की बात है, तब घोड़े, टांगे और ऊंट वगैरह चला करते थे। ये बंदा निकलता है अपने घर से मुर्शिद के कहने पर और निकल पड़ता है अपने घर से। 1 माह लगता है उसको उस इलाके में पहुंचने के बाद वहां से मालूम करता है कि भाई वो मुझे फूल चाहिए, वो कहाँ पर मिलेगा। इलाके वाले उसको बताते हैं कि देखिए वो फूल साल में सिर्फ 6 माह लगता है और उसके बाद 6 माह वो नहीं उगता, तो आपको ना कुछ इंतजार करने पड़ेगा। अभी अभी उसकी सीजन खत्म हो गई है। तो वो बंदा इंतजार करता है, 6 माह इंतजार करने के बाद वो उस फूलों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके अरक उसको मिल जाता है। पूरी की पूरी बोतल जो होता है ना, 1 साल के बाद मुकम्मल करके वापस आ रहा होता है। जी सर। काइंडली आप लोग कुछ अपने आवाज माइक प्रॉब्लम है? म्यूट रखिए। जी सर आप कंटिन्यू रखिए काइंडली, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि वो बंदा 1 साल के अंदर वो बोतल इतनी अरग की लेकर वापस आ रहा होता है। अब 1 माह का सफर करके वापस जब आता है तो वो अब सीधा जाता है मुर्शिद के पास। मुर्शिद के पास जैसे ही जा रहा होता है तो मुर्शिद भी उसकी आमद को पता चल जाता है और वो बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। अब थोड़ा सा फासला रह जाता है कि ऐसे समझे कि चंद कदम ही होते हैं, वो मुर्शिद को अपने हाथ से वो देने वाला होता है वो इतनी इतनी बोतल जो थी। और वो जैसे ही बोतल देने की कहता है उसको ठुड्डा लगता है और गिर जाता है और वो बोतल शीशे की बनी होती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही गिर जाती है ना वो ऊपर उठता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। और आंसू जब भर आते हैं ना तो वो उसकी आंखों से आंसू टपकने वाले ही होते हैं। वो मुर्शिद उसका आगे जाके हथेलियां यूं कर देता है तो दोनों हथेलियों पे उसके आंसू आके गिरते हैं। तो उधर वो बुजुर्ग उस बंदे को कहता है कि बस हमें आपके ये 2 आंसू चाहिए थे, अब जो चीज आपको मिलेगी ना इसकी आप कदर करोगे। तो ठीक इसी तरह अगर आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर बनना चाहते हैं ना तो आपको कुछ ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेगी। वो किस तरह की कुर्बानियां देनी पड़ेगी? कि खुद के साथ सच्चा होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूं कि कंडीशन एक ही है। क्या कंडीशन है? वो ये कंडीशन है कि आपने खुद के साथ सच्चा होना है। अगर आप चाहते हैं
कि आप ये स्टार्ट करें, तो कैसे स्टार्ट करें? इफ यू वांट टू डिस्कवर योरसेल्फ, ये अपने आप से पूछना चाहते हैं कि मैं क्यों पैदा किया गया हूं, मेरे अंदर सलाहियतें क्या हैं, मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, मैं उनको पहचानूं, तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे? उसके लिए मैं आपसे इधर एक एक्टिविटी करवाना चाहता हूं। अगर किसी के पास बुक वगैरह है या नहीं है, चंद सवालात हैं आपके सामने रखूंगा, नोट कर ले। और अभी आप नहीं भी कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन बाद में जाकर खुद से जरूर पूछिएगा कि मैं कहां से सफर अपना स्टार्ट करूं। अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ चीजें हैं या नहीं है, सबसे पहले चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। ये है एक्टिविटी, अगर हो सके तो उसको नोट कीजिएगा, खुद से भी पूछिएगा कि क्या आप अभी इधर कमेंट में 5 अपनी आदतें लिख सकते हैं, जो आपकी कोई आदतें हो, 5 आदतें, अच्छी आदतें, कोई भी 5 अच्छी आदतें आप अगर लिख सकते हैं तो इधर कमेंट करके बताइए, वरना बाद में खुद से भी पूछिएगा कि आपके अंदर क्या क्या आदतें हैं, कौन कौन सी आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं। तो 5 अपनी आदतें जरूर लिखिएगा। उसके बाद कभी कभी ये भी होता है ना, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका, घर पे कोई बंदा चाय बनाता है, उसकी चाय अच्छी लगती है, किसी की राइटिंग अच्छी होती है, कोई अच्छी नात पढ़ लेता है, कोई अच्छी तिलावत कर लेता है, ये सारी खूबियां हैं, ये आदत हैं अच्छी अच्छी। अगर आपको अपनी आदत का पता होता है ना, तो फिर आपको अपनी जात पर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी को पता नहीं कि मेरे अंदर कौन सी सलाहियतें हैं, कौन सी खूबियां होती हैं, तो इधर मैं एक छोटी सी आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूं जो आपको हेल्प करेगी कि आपके अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हो सकती हैं। कहानी कुछ यूं है कि एक बिजनेसमैन था, हर साल अपने घर में एक पार्टी करता था। पार्टी क्यों करता था? उसका भी एक मकसद था, एक गोल था, एक टारगेट था। वो क्या करता था, उसके घर में एक बड़ा स्विमिंग पूल था, लेकिन वो स्विमिंग पूल नहाने के लिए नहीं होता था, उसके शौक ही निराले, अजीब शौक थे। उसने अपने घर में बड़े ही खूबसूरत लेकिन खतरनाक जानवर पाले हुए थे। वो जानवर क्या थे? वो थे क्रोकोडाइल्स। क्या करता था, हर साल दूसरे ममालिक से जोड़ी मंगवाता था, 2 क्रोकोडाइल मंगवाता था, और वो लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ पार्टी करता था। वो चारों तरफ उस स्विमिंग पूल के कुर्सियां लगवाता था, स्टेज लगवाता था, वहां पर उनकी ये महफिल जमती थी, फिर फ्रूट होता था, खाने पीने की चीजें होती थी, अलग अलग इंजॉयमेंट होता था। तो ये हर साल फिर वो पार्टी करता था और एक ऐलान करता था। ऐलान क्या करता था? ऐलान ये करता था कि है कोई माइका लाल जो ये अंदर इस स्विमिंग पूल में 2 क्रोकोडाइल घूम रहे हैं, ये जो मगरमच्छ घूम रहे हैं, यहां से छलांग लगाकर इस तरफ से निकल के आए तो उसके लिए मेरी तरफ से 2 इनामात हैं। उसके लिए मेरी तरफ से 2 इनामात हैं। वो 2 इनामात क्या है? नंबर 1, अगर किसी ने भी यहां से छलांग लगाई स्विमिंग पूल से और इसको क्रॉस करके इस तरफ निकल आया, तो उसके लिए 2 इनामात ये हैं कि नंबर 1, अपने बिजनेस में पार्टनर बनाऊंगा, नंबर 2, अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। हर साल ये करता था, कोई भी नहीं कर पाता था। क्यों? कि मौत के मुंह में कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा ना, कोई भी पसंद नहीं करेगा ना। लेकिन हुआ ये कि इस मर्तबा प्रोग्राम हुआ, अरेंजमेंट हुई, सब कुछ हुआ, सेम टू सेम सब कुछ वही होगा। लेकिन कमाल ये हो गया कि जब उस बिजनेसमैन ने ये ऐलान किया कि है कोई माइका लाल, यहां से कूदे और वहां से निकल कर दिखाए, तो उसके लिए वही 2 इनाम है, मैं अपनी बेटी से शादी कराऊंगा और बिजनेस का पार्टनर भी बनाऊंगा। तो एक यंग लड़का जैसे ही ऐलान सुना उसने, तो उस स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। लोगों ने कहा ये गया, मगरमच्छ खा जाएंगे इसको, इसने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, बर्बाद कर ली, किसने कहा इसको छलांग लगाओ? लेकिन वो नौजवान बच्चा 25 साल का, सारे देखकर हक्के बक्के रह गए, हत्ता के बिजनेसमैन भी हैरान रह गया
کہ یہ کون بچہ ہے جس نے چھلانگ لگائی ہے. وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کروکوڈائل سے بچاتے بچاتے 20%, 30%, 40%, حتیٰ کہ 80% اس نے سوئمنگ پول کراس کر لیا جس میں کروکوڈائل گھوم رہے تھے بچاتے ہوئے. آخر کا 90% پر پہنچ گیا اور وہ بزنس مین اپنی مسند سے کھڑا ہو گیا. اور جیسے ہی اس بچے نے یہاں سے چھلانگ لگائی تھی 100% کلیئر کر کے دوسری جانب نکل آیا تو سارے مجموعے نے جتنے بھی لوگ تھے اس کے لیے تالیاں بجائیں. اس بچے کے لیے بھائی کمال ہو گیا, اس بچے نے کمال کر دیا. پھر کیا ہوا کہ وہ بزنس مین خود اتر کر اس نے سب سے پہلے اس کو ہگ کیا, اس کو گلے لگایا. گلے لگانے کے بعد کہتا ہے کہ بیٹا میں ہر سال پروگرام اسی لیے کرتا تھا, بتا آج تو نے یہ چیلنج ایکسپٹ کیا اور تو نے فائنل کر کے دکھایا, موت کے منہ سے تو نکل آیا, کروکوڈائل سے بچ کے آیا, بتا تمہاری کیا خواہش ہے, کیا میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے, وہ 25 سال کا نوجوان کہتا ہے کہ سر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ جہاں چاہیں وہاں کروائیں, کہ پھر میرے بزنس کے پارٹنر بنو گے, میری اتنی ساری کمپنیاں میں تمہیں آدھا حصہ دیتا ہوں. کہ انکل آپ اپنا بزنس جس کے ساتھ کریں سو کریں, مجھے صرف ایک بتائیں, مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی, مجھے صرف وہ بندہ بتائیں جس نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا. مجھے صرف ایک وہ بندہ بتائیں جس نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا, وہ کون بندہ ہے؟ تو کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں, تو ہمیں نا اس دھکے کی ضرورت ہوتی ہے. اس بچے نے جس کو دھکا ملا اور مصیبت کے وقت اپنے آپ کو بچا کر سوئمنگ کر کے نکل آیا, ٹھیک اسی طرح دھکا کیا ہے؟ دھکا یہ ہے کہ آپ کے ٹیچرز, آپ کے گرو, آپ کے مینٹور, آپ کے آس پاس کے جو ریلیٹیو ہیں یا آپ کے دوست احباب ہیں جو آپ کو بار بار کہتے ہیں یار تمہارے اندر یہ چیز اچھی ہے, تم یار یہ بڑا اچھا کر لیتے ہو, تم گا اچھا لیتے ہو, تمہارے اندر نا ایک اسپیکنگ کا پاور ہے, تم کمیونیکیٹ اچھا کر لیتے ہو, تم اسٹوریز اچھی بتا لیتے ہو, تمہارے اندر کمپیئرنگ کی اچھی صلاحیت ہے, تم ڈیلنگ اچھی طرح سے کر لیتے ہو, تم کوآرڈینیٹر اچھے ہو, تمہارے اندر یہ صلاحیتیں. جو لوگ آپ کو آپ کی خوبیاں بتاتے ہیں نا وہ آپ کے غم خوار ہوتے ہیں, خیر خواہ ہوتے ہیں, وہ آپ کے موسن ہوتے ہیں. وہ یہی دھکا ہے بتانے والا جو میں بات آپ کو وہ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں, آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, آپ کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں, آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں. تو یہ خوبیاں کیا کرتی ہیں آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرتی ہیں. تو میں نے کیا کہا, اسٹارٹ فرام زیرو سے کیا کہ اپنی عادات اور خوبیاں لکھیں, کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری کون کون سی عادات ہیں. اس کے علاوہ آپ کم سے کم 5 ایسی چیزیں رکھیں, وہ ٹیلنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا کیا ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ کیا ہے میں آپ کو ادھر بتا چلوں, کوئی مجھے بتائے گا واٹ از ڈفرینس بٹوین ٹیلنٹ اینڈ اسکل؟ کمنٹ کر کے کوئی بتائے گا کہ ٹیلنٹ اور اسکل میں کیا فرق ہے؟ واٹ از ڈفرینس بٹوین ٹیلنٹ اینڈ اسکل؟ یس سر جی میں بتاؤں؟ جی سر, جی ضرور سر جی. ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے جو انسان کو بچپن سے لے کر اپنی اس صلاحیت کو سرچ کرنے کے بعد, ڈھونڈنے کے بعد وہ اس کو سرچ کر, اور اسکل جو ہوتی ہے وہ اس کو سر تجربے سے ملتی ہے, اپنے نالج کو تجربے میں بدلنے کے بعد سر اس کو ملتی ہے, اور اس کے مینٹور اس کو گائیڈنس دیتے ہیں اس میں. زبردست, بہترین سہیل صاحب. اور کوئی؟ جی لارب, زبردست سر جی. جو ٹیلنٹ مطلب جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, ویل ڈن, زبردست, بہترین. اور کوئی بتائے گا؟ اسکل جو ہم تجربے سے سیکھتے ہیں, صحیح ہے, زبردست, بہترین. جی ہاں بہتر, تمام بہترین. جی ہاں بہترین, زبردست. تو اب مختصر یہ بتا دوں کہ جو ٹیلنٹ ہے نا وہ خدا کی طرف سے ملتا ہے, وہ بچپن سے ہی ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے, بس اس کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو فائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. اسکل جو ہے نا ہم سیکھتے ہیں,
स्किल्स सीखी जाती हैं, वो कोई भी स्किल हम सीख सकते हैं, लेकिन टैलेंट खुदा की तरफ से हमारे अंदर मौजूद होता है। इधर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता चलूं कि हमें कैसे पता चलता है कि टैलेंट क्या होता है और स्किल्स जो हमारे अंदर होती हैं वो हम सीखते हैं। जो मैंने बताया मुख्तसर स्किल सीखते हैं, टैलेंट खुदा की तरफ से होता है। एक रास्ते में बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, तो वहां के लोगों ने मशवरा किया कि इस पत्थर को हटवा दिया जाए या इस पत्थर से कुछ बना लिया जाए। तो कुछ पत्थर के कारीगरों को बुलवाया गया जो मजमे बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं। उनको दिखाया गया ये भाई बड़ा पत्थर है, ये रास्ते में रुकावट है, इससे कोई भला इधर एक चौक बना लेते हैं, इधर कोई डिजाइन बना लो, कोई मजमा बना लो। तो उनके आर्टिस्टों को बुलाया गया जो पत्थर का काम करते थे। तो उनको दिखाया गया कि नहीं भाई ये बहुत भारी पत्थर है और ये इसको कौन तोड़ेगा, ये मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा। कहते हैं कि वो तो चले गए, लेकिन एक दीवाना सा आर्टिस्ट था, वो आया, उस पत्थर ने उसको पत्थर को देखा और पत्थर को जब देखा ना तो उसने कहा मैं बनाऊंगा। तो उसने उस पर क्या किया कि चारों तरफ से फिर पर्दे लगा लिए, उस पर काम करना शुरू कर दिया और छेनियों के साथ, हथौड़ों के साथ आवाजें आ रही थी, टक टक टक। वहां से लोग गुजरते तो एक बच्चे का गुजर हुआ। एक बच्चे का जब गुजर हुआ तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल ये रोज रोज आप कौन सा शोर करते रहते हो, छेनियों के साथ तोड़ फोड़ करते रहते हो और पता नहीं क्या करते रहते हो, कर क्या रहे हो आप, आपका मकसद क्या है। तो वो आर्टिस्ट जो उधर उस पत्थर से कोई चीज बना रहा था तो कहने लगा कि बेटा इस पत्थर के अंदर एक फरिश्ता कैद है, मैं उसको आजाद करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा कि वो खूबसूरत सा मजमा सामने तैयार होकर आ गया और लोगों हैरान रह गए कि जिस पत्थर को हमने समझा था ये बेकार है, फालतू है, इस बंदे ने उसके अंदर जान डालकर एक शाहकार बनाकर दिखा दिया। ठीक इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई स्किल जरूर रखी होती है। बस उसको निखारने के लिए कुछ उस्ताद आते हैं जो आपकी उस छेनियों के साथ थोड़ी सी सफाई करते हैं, पॉलिश करते हैं और वो पॉलिश करने के बाद निखर कर सामने आ जाती हैं आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट, आपका पैशन वो सामने आ जाता है। तो ठीक इसी तरह आपने स्टार्ट करना है जीरो से। उसके लिए मैंने आपसे 2 सवाल किए। नंबर 1, अपने आदतें, खूबियां क्या है, आपके पास टैलेंट कौन सा है, उसके बाद आप किन बातों पे खुश होते हैं, वो कौन से काम है जो आपको खुश करते हैं, जरा बताएंगे आप कमिट करके वो कौन से काम है जिसको करके आपको खुशी होती है। जी मैं इंतजार कर रहा हूं, 30 सेकंड है आपके पास, आप लिखकर बताएं कि वो कौन से काम है जिनको कर कर आपको खुशी मिलती है। सुहेल साहब आप कुछ बोलेंगे? जी सर, मैं बोल तो सकता हूँ बट मैं चाहूंगा कि मैं एंड पे बोल लूं। मैं इन सबसे पार्टिसिपेशन चाहता हूँ पहले। जी वो कौन से काम है जिनको करके आपको खुशी मिलती है। कोई भी एक काम हो सकता है, 2 काम हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। तो कहते हैं कि एक बंदा था, वो कह रहे थे, उससे यही सवाल पूछा गया कि आपको क्या पसंद है, कि सर मुझे नींद बड़ी पसंद है। वो तो हर किसी की पसंदीदा होती है, लेकिन मैंने पूछा वो कौन से काम है जो आपको बहुत पसंद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर गरीब लोगों की मदद करके मुझे दिली सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है मुझे। जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। जी जी ऐसी चीजें बेहतरीन। और दूसरों की मदद करके लोगों की प्रोटेक्शन, सही है, जबरदस्त। ट्रेवलिंग से खुशी मिलती है, जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा सबा, पेंटिंग, अच्छा फ्रेंड्स के इशू सॉल्व करना, जबरदस्त, बेहतरीन। सबा, नूर और एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के काम करके खुशी मिलती है। बेहतरीन, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। जी और कोई बुक्स पढ़कर? अच्छा अरीबा।
बेहतरीन, अच्छा बुक्स, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बेहतरीन, वेरी गुड, अम्मी का ख्याल रखकर, माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। मनाइल जी, अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हल्के में निकलते हैं तो गरीब आवाम के मसाइल सुनकर उनको हल करने में बड़ी खुशी मिलती है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपको मैं एक छोटा सा टास्क देता हूं, अभी करें तो अभी कर सकें। 5 काम ऐसे लिखें जिनसे आपको खुशी मिलती है। जहां पर अभी आपने एक एक लिखा है ना सबने, माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप कमिट कर रहे हैं और ऊपर में से जा रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है, कोई बुक कह रहा है, कोई गरीबों की मदद कर रहा है, कोई वालिदैन की खिदमत कर रहा है, कि किसी के कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। तो आप डायरी में ना ये नोट करते जाइएगा सवालात, इंशाल्लाह ये सवालात आपको मदद देंगे किसमें, आपके बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनने में, ठीक है। सेंड करनी थी सारा जी काइंडली अनम्यूट कीजिए आप लोग सारे। जी सर, आप काइंडली कंटिन्यू कीजिए। अब मैंने कहा ये सवाल नोट कर लें कि आपको कोई भी 5 चीजें ऐसी लिखें जिनको करके आपको बहुत मजा आता है, यानी आप उसे इंजॉय करते हैं, आप थकते नहीं हैं। यहाँ पर बहुत सारों ने कमेंट भी किया, जैसे मैंने बताया, बुक्स रीडिंग हो गई, उसके अलावा खिदमत करना हो गई, अच्छा गरीबों की मदद करना, उनके मसाइल सुनना, ये सारी चीजें यही आपको आगे ड्राइव करेंगी, किसमें, आपके पैशन को फॉलो करने में, यही चीजें आपकी मदद करेंगी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करना है कहां से, मैंने चंद सवाल आपके सामने रखे। नंबर 1 अपनी आदत, नंबर 2 आपका टैलेंट और स्किल्स के हवाले मैंने सवाल रखा। तीसरा आपसे मैंने सवाल पूछा कि आपके अंदर आपको कौन सी वो 5 चीजें हैं जो बड़ा मजा देती हैं, आप जिसको एंजॉय करते हैं, ठीक है, सही हो गया। तो ये नोट कर लिया आपने। अभी नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते तो बाद में सुकून में कीजिएगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे सवाल है कि आप अपनी लाइफ का कौन सा एरिया इंप्रूव करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। जी, वो कौन सा एरिया है जिसको आप तब्दील करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जो आपको पसंद नहीं है फिर भी आप उसको अपने साथ रखे हुए हैं। तो आपका वो कौन सा एरिया है जिसके जरिए आप उसको तब्दील करना चाहते हैं। जी, एक्सक्यूज मी सर। जी, सर काइंडली आप वीडियो में पूरे नहीं आ रहे तो आप काइंडली फ्रेम का अगर ख्याल रख लें तो। अच्छा, ये सर, जी जी, असल में थैंक वो यू सर। कमेंट्स भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा क्लोज करके देखना पड़ता है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। कोई इशू नहीं है सर, थैंक यू ठीक है, सर, ठीक कोई है। इशू नहीं। जी जी जी, तो आप क्या बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अपने मुआशरे में लोगों को बदलना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि अच्छी बात को सुनना पसंद नहीं करते और उसको नेगेटिविटी में ले जाते हैं कि ये मेरे जी ऊपर जी, चढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं उसको बदलना चाहता हूँ कि ये हमारी बैठ के बात सुने, मोहब्बत से, प्यार से। हम जो बात करते हैं उसको मतलब कि अपने अंदर लेके जाएं, देखें उसको भी कहाँ कहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा सही है, बेहतरीन। अच्छा, आपने मशवरा, उससे पहले लोगों को आप बदलें, आप क्या बदलना चाहते हैं, अपना अपना खुद का क्या बदलना चाहते हैं अभी इसी वक्त, क्या चीज है वो उसको बदलना चाहते हैं, अपने आप पर क्या काम करना चाहते हैं, जरा ये बताएंगे। सर मेरी बहुत सारी आदतें हैं जो मतलब कि वीक हैं, तो मैं उसको बदलना चाहता हूँ और बदल भी रहा हूँ इस तरह से। अच्छा चलो ठीक है। डॉक्टर अली शरीयती थे, वो जब छोटे थे तो उन्होंने खुद से एक वादा किया कि मैं पूरी दुनिया को बदलूंगा। कहते हैं कि पूरी दुनिया को बदलने के चक्कर में थोड़ा सा जब मैं बड़ा हुआ और 5वीं क्लास में आया, मैंने दुनिया का नक्शा देखा। मैंने देखा कि दुनिया तो पूरी इतनी बड़ी है, लेकिन छोड़ो, मैं दुनिया को नहीं बदल, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को बदलूंगा। जब पाकिस्तान का नक्शा देखा तो पाकिस्तान में तो 5 सूबे हैं भाई, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी के, ये इतने बड़े हैं, छोड़ो इसको भी नहीं, मैं अपने इलाके को बदलूंगा। अब अपने इलाके पे कैसे आए, जब इंटर पास कर लिया उसने कहा कि भाई अब मैं इंटर में आ गया हूं तो अब मैं अपने मोहल्ले को बदलूंगा। देखा कि मोहल्ला भी नहीं बदला जा सकता। करते करते बीए कर लिया, नौकरी मिल गई, शादी हो गई। शादी के बाद उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को बदलूंगा। करते करते उसके बच्चे पैदा हो गए और जब उसका आखिरी टाइम आया
تو اس نے کہا کہ یار کاش کہ یہ سوال بچپن میں میں نے خود سے پوچھ لیا ہوتا کہ اپنے آپ کو بدلوں گا. جس نے اپنے آپ کو بدلا, اپنی سوچ کو بدلا, آہستہ آہستہ وہ معاشرے, اپنے گھر, محلے, شہر کو بدلنا شروع کر دیتا ہے. کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں, سر قاسم علی شاہ صاحب نے اپنی اکیڈمی سے شروع کیا تھا. میرے استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب نے اپنی اکیڈمی سے شروع کیا تھا, تو دیکھیں ان کا کس طرح ابراڈ میسج پھیل گیا ہے, کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہے. پوری دنیا سر قاسم علی شاہ صاحب کو سنتی ہے, آپ بھی جانتے ہوں گے. تو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے سفر. پہلے اپنے آپ کو بدلیں, اپنی عادتوں کو بدلیں, دیکھیں کہ کون سی چیزیں میں اپنی بدل سکتا ہوں, تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. تو یہ ایک چیز تھی جو چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے. وہ کیا تھے آپ نے بھی سنے کہ نمبر پہلا کہ آپ کی عادتیں کیا ہیں, نمبر دوسرا کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے, نمبر تیسرا میں یعنی کیا 5 چیزیں ایسی لکھیں جس سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, آپ کو خوشی ملتی ہے. وہ 5 چیزیں میں نے کہا. میں نے ابھی آپ سے جو سوال کیا کہ آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو بہت ساروں نے کمنٹ کر کے بھی ہمیں بتایا ہے. تو جو بھی چیز آپ بدلنا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنے خود پہ کام کریں. خود پہ کام کریں گے تو آہستہ آہستہ چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی. مثال کے طور پر کچھ کہتے ہیں کہ بھئی میری صحت صحیح نہیں رہتی. صحت صحیح نہیں کیوں نہیں رہتی؟ سوال ہے. اس لیے کہ ہم زیادہ تر جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, اکیڈمی جاتے ہیں, چیزیں کیا کھاتے ہیں؟ برگرز کھائیں گے, کولڈ ڈرنکس پیئیں گے. یہ پوری کی پوری کرنا صحت صحیح چاہتے ہیں, لیکن چیزیں ایسے کھائیں گے جو ہماری صحت پر برے اثرات ڈالتی ہیں. تو اس کے لیے نا آپ کو ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے, خود کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے, خود سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ابھی میں اپنی کیا کیا چیزیں بدل سکتا ہوں. تو اس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے علاوہ ابھی تک جتنی آپ کی ایج ہے, آپ نے اب تک جتنی زندگی گزاری ہے, آپ کی زندگی کا کوئی خوبصورت دن جو آپ کے لیے بہت ہی عظیم دن ہو, خوشیوں والا دن ہو, اس کو یاد کر کے ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا دن تھا جس دن آپ بہت آپ نے انجوائے کیا تھا, آپ کا دن وہ لائف چینجنگ دن تھا. وہ آپ کو اگر یاد آ گیا تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے, یا پھر وائس کر کے ہمیں آپ بتا سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ سر. ابھی کسی کا کوئی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ, جو ابھی لاسٹ میں سر نے کوشچن کیا ہے تو آپ اس سے ریلیٹڈ کوشچن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم کوشچن آنسر کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی میری خوشی کا وہ دن تھا کہ 9th کے اندر 317 نمبر میرے آئے تھے, اور ان لوگوں کے 480 نمبر آئے تھے 500 میں سے, اور وہ رو رہے تھے اور میں ہنس رہا تھا. اچھا ماشاء اللہ, اچھا زبردست زبردست. سہیل صاحب آگے چلیں. جی سر کنٹینیو کیجیے. مختصر تھوڑی سی چند سلائیڈیں ہیں, بس ابھی کنکلوژن کی طرف ہم جائیں گے کیونکہ میں نے گائیڈ لائن دے دی ہے. یہ چند سوال آپ کو پتا ہے, اس پر ضرور غور کیجیے گا. اب نیکسٹ چلتے ہیں کہ لیٹس اسٹارٹ واٹ ہیپن وین یو ڈونٹ نو واٹ یو ہیو ٹو ڈو. جب آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں پتا نہیں ہوتا کہ مجھے کرنا کیا ہے لائف میں, آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا. ادھر میں آپ کے سامنے ایک چیز سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے بھائی پائلٹ بننا ہے, فار ایگزامپل مجھے پائلٹ بننا ہے. تو پائلٹ بننے کے لیے اس کی نظر ویک ہے, تو مجھے آپ بتائیں کیا وہ پائلٹ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا, کیونکہ نظر کا معاملہ ہوتا ہے, سب چیز کلیئر ہونی چاہیے تبھی جا کر بن سکتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے بھائی میڈیکل میں جا کر ڈاکٹر بننا ہے, لیکن وہ جو ایف اے ہے وہ کرتا ہے آرٹس میں, مجھے آپ بتائیں کیا وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. ایک بندہ ہے کہتا ہے کہ مجھے لکھاری بننا ہے, لیکن اس نے آج تک کچھ لکھا نہیں ہے, کچھ اپنے آئیڈیاز دماغ سے نکال کر ڈائری پر نوٹ نہیں کیے ہیں, تو مجھے آپ بتائیں کیا وہ لکھاری بن سکتا ہے؟ کیا وہ رائٹر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ سارے لوگوں کی یہ خواہشیں ہوتی ہیں, صرف اور صرف اگر آپ کے
दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं वो क्लियर नहीं है, तो आपकी क्या पोजीशन होती है, आपकी तबीयत कैसे हो जाती है, यू फील बोर्डम, आप बिल्कुल बोर्डम डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेक ऑफ फ्रीडम, आजादी आपसे छिन जाती है, आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है और मेंटल कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है। जिस बंदे को पता नहीं होता है ना मुझे लाइफ में क्या करना है, किस कैरियर में जाना चाहिए, कहां पर सर्व करना चाहिए, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम्स जरूर होती होंगी। अगर आप देखें कि इन चीजों में से कोई भी चीज आपके साथ हो रही है, क्या आप बोर्डम हो रहे हैं, क्या आप डिप्रेशन हो रहे हैं, या लेक ऑफ फ्रीडम, लेक ऑफ फ्रीडम किस हिसाब से कि आप अपने आप को कैद समझ रहे हो, आजाद होते हुए भी अपने आप को कैद समझ रहे हो, या देखें कि आपकी लर्निंग स्टॉप तो नहीं हो गई, क्या कुछ आप रोजाना नया सीखते हैं, अगर नहीं सीख रहे तो आपके साथ ये मसला है कि आपका मेंटल कंसंट्रेशन क्लियर नहीं है, आपका माइंड क्लियर नहीं है, जो आपको उस बड़ी मंजिल के मुसाफिर की राह पर लेके चले। तो उससे पहले जो मैंने 4-5 चीजें आपके सामने रखी, खुद गौर कीजिएगा कि आपने अपनी लाइफ में कोई गोल डिसाइड किया है, कोई टारगेट डिसाइड किया है, कोई चीज चूज किए नहीं किए, अगर नहीं किए तो ये चीजें आपके साथ जरूर होंगी। अब ये जो खुद को जानने का सफर है, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, जो बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं, ये सेल्फ डिस्कवरी भी एक ट्रैक होता है, कीप गोइंग ऑन, आप चलते जाएं, खुद ब खुद रास्ते आसान होते जाएंगे। अब मिसाल दूं आपको, रात का टाइम है अभी, तो आप गाड़ी में सफर कर रहे हो और गाड़ी में जो अगली लाइटें होती हैं गाड़ी की, आपको कम से कम 30 या 40 मीटर के फासले तक रोशनी दिखाई देते हैं, आगे अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन जब अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं तो खुद ब खुद रास्ता दिखने में आना शुरू हो जाता है। अगर आप भी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप उस ट्रैक पर चल रहे हैं, तो खुद ब खुद वो रास्ते खुलते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो जो गिरे हैं खुलती जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर क्या सलाहियतें रखी है, मुझे किस काम के लिए पैदा किया गया है, और मेरे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलाहियतें रखी हैं, उन सलाहियतों को इस्तेमाल करके मैं किस फील्ड में, किस कैरियर में बेहतरीन सर्व कर सकता हूं। अब आती है इस बात पे कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, जब आपको पता होता है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। अब आपका माइंड क्लियर है, आपको पता है, आपको डायरेक्शन क्लियर होते हैं, आपको सब कुछ पता है कि मेरा रास्ता क्या है। अब आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर बनने जा रहे हैं, आपने वो सवाल ढूंढ लिया, आपने वो चीज ढूंढ ली जिसके लिए आप आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आपके साथ क्या होता है, यू फील, क्या ब्लिस कहते हैं, ब्लिस क्या होता है, एक अंदर की खुशी होती है, एक अंदर का फ्रीडम होता है, आइडेंटिटी होती है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप अपने गोल्स को सामने रखते हुए, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये चीजें आप देखें, अगर आप इन पर पूरे उतरते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या आप उसे खुशी से करते हैं, क्या आप आजाद होकर करते हैं, क्या आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपकी आइडेंटिटी है, और आप खुद महसूस करेंगे जो भी आप काम कर रहे हैं कॉन्फिडेंट होकर कर रहे हैं। और जो भी बड़ी मंजिल का मुसाफिर होगा उसके माइंड में गोल्स जरूर होंगे, टारगेट्स जरूर होंगे, तभी वो अपनी उस जर्नी को आगे से सफर करता जाएगा। तो व्हाट सपोर्ट्स यू इन सेल्फ डिस्कवरी, वो कौन सी चीजें हैं आपको सेल्फ डिस्कवरी में मदद देती हैं, अपने आप को पहचानने में, बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनने के लिए। तो वो आपका एक्सपोजर हो सकता है, आपकी नॉलेज हो सकती है, आपका एक्सपीरियंसेस हो सकता है, फ्रेंड्स कंपनी हो सकती है, कोचिंग हो सकती है, काउंसलिंग हो सकती है, ये सारी चीजें आपकी मददगार होती हैं। अब तक जहां पर आप पहुंचे हैं, इनमें से कोई ना कोई आपकी चीज मददगार होती सकती है। वो आप कहीं पर घूमे होंगे, आपने देखा होगा, आपने नॉलेज हासिल की होगी, आपने एक्सपीरियंस हासिल किया होगा, और उसके साथ साथ कोचिंग यानी आपको टीचरों ने गाइड किया होगा, या आपने किसी से काउंसलिंग ली होगी। तो ये सारी चीजें आपको मदद देती हैं किसमें, सेल्फ डिस्कवरी के इस जर्नी में। अब आपको कैसे पता चले, हाउ डू यू नो
you are on the track of self discovery. आपको कैसे पता चले कि आप सेल्फ डिस्कवरी के ट्रैक पर हैं या नहीं हैं? तो अब चंद चीजें हैं जो आपके सामने रखूंगा, आपके स्क्रीन के सामने शेयर किए, कि कुछ आपको निशानियां मिलेंगी। वो कहते हैं ना कि कुदरत की तरफ से निशानियां मिलती हैं, खुद ब खुद अंदर से ये फीलिंग महसूस होती है कि अल्लाह ने मुझे किन चीजों के लिए बनाया है। वो निशानियां कैसे मिलती हैं? कहीं पर कोई दोस्त आपको बता देता है, टीचर बता देता है, उसके साथ साथ क्या आप जो भी काम कर रहे होते हैं बगैर मुआवजे के कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ गेट गाइडेंस अबाउट योर वर्क, आप जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप उस काम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये निशानियां हैं सेल्फ डिस्कवरी के ट्रैक पर। और तीसरी बात क्या है, चौथी बात क्या, स्टार्ट मीटिंग विथ रेलिवेंट पीपल। हो सकता है आप उन लोगों से मुलाकात करना चाहते हो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, उनसे मिलकर आपको खुशी होती है। मिसाल दूं, शादियां होती है ना हमारे यहाँ, तो हम पिक्चर्स बनवाते हैं। अगर उन शादियों को साल डेढ़ गुजर जाता है तो पुराना एल्बम जब सामने आता है ना हमारे, तो अगर ग्रुप पिक्चर होती है, आप मुझे सच्ची बताइएगा, यकीन से बताइएगा, एक साल के बाद जब आप उस अपनी फैमिली के साथ ग्रुप पिक्चर में अपने उस ग्रुप पिक्चर को देखते हैं तो सबसे पहले किस इंसान को ढूंढते हैं? अपने आप को ढूंढते हैं कि मैं कहाँ पे खड़ा होता हूँ। तो ठीक इसी तरह आप जब किसी फील्ड में जा रहे होते हैं तो जो जो लोग आपको मिल रहे होते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपके पैशन से रिलेटेड, आपके शोबे से रिलेटेड, तो वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है, यानी वो चीज आपको इंस्पायर करती है। फिर क्या होता है, पॉइंट नेक्स्ट है कि अनकॉन्शियसली कलेक्ट डेटा अबाउट योर पैशन। अब सबसे सवाल है, जो बंदा जिस चीज में पैशन रखता है अपने मोबाइल को चेक करे कि उसके मोबाइल के अंदर जो डेटा मौजूद है, मैं कहता हूं जिस भी फील्ड से उसके मोबाइल में अंदर डेटा मौजूद है, तो वो उस चीज से मोहब्बत करता है, उसका वो पैशन है, उसका शौक है। मैं एज अ ट्रेनर हूं, मैं एज अ राइटर हूं, मैं एज अ टीचर हूं, तो मेरी मोबाइल में मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो लेक्चर्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, स्लाइडें मिलेंगी, पिक्चर्स मिलेंगी, रिलेटेड मेंटर्स के ग्रुप मिलेंगे, उसके साथ साथ फेसबुक पे जो मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं वो लर्निंग वाले होंगे, यूट्यूब पे जो मैंने चैनल सब्सक्राइब किए होंगे वो लर्निंग वाले होंगे। ये क्यों किए हुए हैं? ये इसलिए किए हुए हैं कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है, रोज मैं नई चीजें सीखता हूं। अगर आपके मोबाइल में ऐसी चीजें हैं जो आपके पैशन से रिलेटेड हैं तो आप खुश नसीब हैं कि आप अपनी फील्ड से रिसर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। Always work with the boundaries of time and space। जब भी आप वो काम करते हैं तो आप स्पेस और टाइम से निकल जाते हैं। ये चंद निशानियां हैं खुद को पहचानने की, खुद को जांचने की कि आप सेल्फ डिस्कवरी के ट्रैक पर हैं, बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं। उससे पहले जो सेल्फ डिस्कवरी है उसके लिए आपको सब्र चाहिए, उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको लोगों की तनकीद का सामना करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। ये आपने अगर 4 फेजेस जो पैशन, इन्वेस्ट टाइम, फेस क्रिटिसिज्म, पे सम प्राइस, ये 4 चीजें जो हैं ये आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपकी मदद करती हैं सेल्फ डिस्कवरी के किस्में। अब एक अलमिया में आपको बता दूं, हमारे माशरे में क्या होता है, सक्सेस इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में किसको सक्सेस कहते हैं? गुड जॉब, अच्छी जॉब हो, भली सर्टिफिकेशन ना हो, फेम हो, पावर हो, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, लिंक्स विद स्ट्रॉन्ग पीपल हो। हमारी सोसाइटी, हमारे घर वाले, हमारे लोग ये चाहते हैं हमसे, हमारी सक्सेस ये होनी चाहिए। जी, तो मैं बता रहा था, बस एंडिंग में चल रहे हैं, उसके बाद बस चंद सवालात होंगे, उसके बाद एंड करेंगे, टाइम भी ज्यादा हो गया है शायद, तो बस एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारी माशरे में, हमारी सोसाइटी में सक्सेस किस चीज को मानी जाती है? इन 3-4 चीजों को मानी जाए। अच्छी जॉब होनी चाहिए,
नाम होना चाहिए, पावर होना चाहिए, स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, लिंक्स जो बड़े लोग हैं उनके साथ होना चाहिए। ये हमारी इस सोसाइटी की सक्सेस है। लेकिन खुद को देखें, हम अपने अंदर झांके, क्या इन चीजों से हमें वो खुशी मिलेगी? इन चीजों को करके हमें खुशी मिलेगी? हाँ, हमारे मसाइल कुछ हल हो जाएंगे, लेकिन जो हमारी सक्सेस है, जो हमारी अंदर की सक्सेस है, वो इन चीजों में नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा। ये आपको तस्वीर दिखने में आ रही है, डेथ बेड थ्योरी। ये क्या है? ये छोटी सी स्टोरी है। ये एक शख्स है बड़ी उम्र का, ये मर रहा है, आखिरी लम्हात है, इसके रिश्तेदार खड़े रहे हैं, रो रहे हैं, इसके लिए ऊपर खड़े हुए हैं, इसके लिए दुआएं कर रहे हैं, और ये आखिरी लम्हात में है, और ये सारे इसकी फैमिली मेंबर्स, इसके बच्चे, इसकी बीवी, इसके रिश्तेदार खड़े हुए हैं इसके ऊपर, और ये आखिरी लम्हों में है। और अचानक देखता है कि गेट के सामने चंद लोग आए हुए हैं, दूसरे आए हुए हैं। उनको देखकर कहता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे यूं घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? तो वो लोग कह रहे हैं कि अब तुम हमें नहीं पहचान रहे। तो पूछता है कि बताओ तो सही, तुम लोग हो कौन? तो कहते हैं कि हम तुम्हारी वो ख्वाहिशें थी जो अंदर दबा के रखी, हम तुम्हारे वो ख्वाब थे, हम तुम्हारे वो ड्रीम थे, हम तुम्हारे वो टैलेंट थे, हम तुम्हारी वो सलाहियतें थी जो तुम्हारे अंदर थी। तुमने कभी भी कोशिश नहीं की, हमें बाहर आने का मौका ही नहीं दिया, तुमने दुनिया वालों को बताया भी नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, क्या क्या खूबियां हैं। अभी तुम खुद भी मर रहे हो और उसके साथ साथ आज हम तुम्हारे साथ दफन हो जाएंगे। इंसान जब आखिरी लम्हे में हो तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इस लाइफ को, अपनी इस जिंदगी को, अपने थैंक यू। तो हमारी जिंदगी कुछ ऐसे ही है कि हमें अगर जाना ही है तो कोई मकसद के साथ जाएं, कुछ बड़ी मंजिल का मुसाफिर बन के जाएं, और हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके जाएं जो जाने के बाद जो हमें इस दुनिया वाले भी याद रखें, और यहाँ से जाने के बाद और हमारे वो तो शायद आखिरत भी बन जाए। तो इस डेथ बेड थ्योरी से हमें ये पता चला कि हम अपनी जिंदगी को किसी मकसद के तहत इस्तेमाल करें, और ये जो हमारी अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, ये एक अजीम तोहफा दिया है अल्लाह तबारक व ताला ने। अब स्टैंडर्ड्स ऑफ सक्सेस क्या होने चाहिए कि क्या हमें जिन चीजों से खुशी मिलती है हम खुश हैं? क्या पीस ऑफ माइंड है? क्या हमारे दिल मुतमिन है? अगर दिल मुतमिन होंगे तो फिर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे दूसरों की लाइफ में। जैसे मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन की पूरी टीम को कि वो किस तरह से लोगों को जोड़े हुए हैं। खास तौर पे सोहेल साहब आप हैं, मिस समीन यूसुफ है, मिस मारिया नौशीन है, या और जितने भी आपके इस इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के मेंबर्स हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूं कि माशाल्लाह आप बेहतरीन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं दूसरों की लाइफ में, आप इस पर पूरा उतर रहे हैं। तो ये अभी आपकी एक खिदमत है, ये भी आपका एक कंट्रीब्यूशन है। तो आप मिलजुल कर टीम की सूरत में मिलकर ये जो काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चुना है कि आप लोगों की गाइडेंस का जरिया बने। ये अल्लाह आपसे एक काम ले रहा है, दूसरों की खिदमत करना, दूसरों को गाइड करना, दूसरों को करियर के हवाले से जो भी आपका मोटिव है, तो आप भी इसको कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। अब जो सुन रहे हैं, आप भी कोई अपना ऐसा मकसद बनाए जिससे लोगों का फायदा हो, जिनकी जिंदगियों में आप कुछ आसानियां कर सके। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज करें अपनी लाइफ को, कोई भी 3 काम चुने
3 काम चुने, उनको प्रोटोटाइज कर ले कि मुझे भाई ये काम करने हैं, उनको प्रोटोटाइज कर ले, अपनी लाइफ के साथ जोड़ ले, अपनी जिंदगी का मकसद बना ले उन कामों को। तो उससे होगा क्या कि आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर बनकर जाएंगे, तो आप गोया के उस सफर पर गामजन हो गए हैं। तो ये लास्ट स्लाइड है मेरी, फॉर सक्सेस सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप चाहते हैं, आपको जिंदगी में कामयाबी चाहिए, कौन सी कामयाबी? एक वो कामयाबी थी फेम नेम ये वाली। अगर असल कामयाबी चाहिए, आप खुश रहें, आप पीस ऑफ माइंड हो, आपको इनर सेटिस्फैक्शन हो, अगर आप दूसरों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं। तो चंद चीजें बस मैं सामने रखूंगा कि मजीद इस टॉपिक से रिलेटेड आप खुद को जानना चाहते हैं तो सर कासिम अली शाह साहब की किताब है अपनी तलाश, ये वाली किसी ने पढ़ी है तो बहुत अच्छा। इसमें 34 सलाहियतें हैं जो आपको बताती हैं कि आप किस काम के लिए बने हैं। अगर आपके पास ये किताब मौजूद नहीं है तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन की टीम को, मेरे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है वो शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ मैं ये आपको बताता चलूं कि अगर आपने ये किताब पढ़ ली, इसमें 34 सलाहियतें हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर के जो सवाल है कहाँ पर खड़े हुए हैं, किस जगह पर खड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। तो मैं बस आखिर में यही कहूंगा, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा रहा ये प्रोग्राम। अगर 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक्टिविटी हम मिलकर करना चाहते हैं। सोहेल साहब या मैडम मारिया, नौशीन साहब, समीन साहब, जरा रिप्लाई दीजिएगा। 5 मिनट हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं मिलकर? जी सर, जी सर, जी सर, व्हाई नॉट। अब एक्टिविटी ये है कि ये पूरा जो सेशन हुआ है ना, इस सेशन से रिलेटेड ही छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी ये है कि सब आप जहां पर भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, अपनी आंखें बंद करेंगे। एक छोटी सी, इसको कहते हैं ड्रीम एक्टिविटी। क्या कहते हैं? ड्रीम एक्टिविटी। हम ड्रीम एक्टिविटी करेंगे 4 मिनट के लिए, मुख्तसर 2 से 3 मिनट, 4 मिनट के लिए। उसके बाद इस सेशन को वाइंड अप कर जी मेंबर्स, आपको आवाज आ रही है सर की? नहीं सर की आवाज कट गई है। ओके, काइंडली वेट कीजिए सर, अभी आ जाते हैं हम आप कंटिन्यू कीजिए सर। आवाज आ रही है? जी सर, आप हेलो? एक्टिविटी करवा रहे थे सर, आप सुन पा रहे हैं मेंबर्स? आपको जी, सर अब की ड्रीम आवाज आ रही एक्टिविटी है? है, सारे अपनी आंखें बंद कर लें। और ये छोटी सी ड्रीम एक्टिविटी है, इसको मेडिटेशन भी कह सकते हैं, ड्रीम एक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लें और 10 गहरे गहरे सांस लें। आंखें बंद कर लें, 10 गहरे गहरे सांस लें। सब अपनी आंखें बंद करें, 10 गहरे सांस लें। बिल्कुल सुकून महसूस करें, कोई भी चीज नहीं आपकी ज़हन में। गहरे गहरे सांस लें। उस दिन को याद करें कि जिस दिन अल्लाह पाक ने आपको इस दुनिया में भेजा, और जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे, आपके वालिदैन, आपके माँ और बाप आपको देखकर कितना खुश हो रहे थे। महसूस करें उस लम्स को जो आपके वालिदैन आपको छूकर, आपको टच करके महसूस करते थे, आपसे प्यार करते थे, और करते करते आप 2 साल के हो गए। और यूं आपने अपने वालिदैन को पहचाना, देखा, उनके चेहरों को देखा, आपने उनको याद किया। और उनको याद करें, उनकी फीलिंग्स को याद करें कि किस तरह आपके वालिदैन आपसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। और यूं करते करते आप प्राइमरी स्कूल में गए, 5वीं क्लास पास की। उन दोस्तों को याद करें जो आपके 5 क्लास में साथ में थे।
ان کو محسوس کریں, ان کو یاد کریں جو 5 کلاس میں آپ کے ساتھ پڑھتے تھے, آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان کو یاد کریں. اور کرتے کرتے آپ میٹرک میں پہنچ گئے, ان میٹرک کے دوستوں کو یاد کریں جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے, ان کے ساتھ آپ نے 5 سال گزارے, ان کو یاد کریں. کرتے کرتے آپ نے انٹر کر لیا, انٹر کے دوستوں کو یاد کریں, ان دوستوں کو یاد کریں جو آپ کے ساتھ انٹر میں پڑھتے تھے. اور یوں کرتے کرتے آپ یونیورسٹی میں پہنچ گئے, اور یونیورسٹی کی زندگی آپ انجوائے کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. ابھی رات کا موسم ہے, ایک پارک ہے, ہرا بھرا پارک ہے, ذرا غور کریں اس پارک میں, توجہ کریں اس پارک میں کہ آپ اس پارک میں بیٹھ رہے ہیں اور آسمان کو دیکھ رہے ہیں. آسمان میں الگ الگ تارے ہیں, وہ الگ الگ تارے چمک رہے ہیں, وہ الگ الگ تارے ہیں, یونیک تارے ہیں, اور ان تاروں میں ایک تارا آپ کا بھی ہے, اور آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو میرا تارا کتنا چمک رہا ہے. اور کرتے کرتے صبح ہو گئی کی فیلڈ ہے, اور آپ دو چلنا شروع ہو گئے. چلتے چلتے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں کہ آؤ یہی بڑی منزل کی مسافر کا راستہ ہے, اور آپ چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے چلتے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک پہاڑ آتا ہے, ایک ماؤنٹین آتا ہے, آپ کو تکلیف آتی ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں, آپ کی سانس پھولنے لگتی ہے, لیکن دل میں چل رہا ہے کہ میں تو بڑی منزل کا مسافر ہوں, مجھے رکنا ہے تھوڑے عرصے کے لیے. تو یوں کرتے کرتے آپ دوبارہ اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کرتے کرتے آپ اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں, آگے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, اور یوں کرتے کرتے آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں, اور یوں پوری دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنا گول اچیو کر کے دکھایا ہے, جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا یا چاہتی تھی, جو میں بننا چاہتا تھا یا بننا چاہتی تھی, جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتا تھا یا چاہتی تھی, آج میں نے وہ حاصل کر کے دکھایا ہے. آپ خوشی ہیں, آپ اندر سے بالکل خوش ہیں, اتنے خوش ہیں کہ آپ اپنے آپ سے بھی خوش ہیں, آپ اپنے اللہ سے بھی راضی ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا ٹریک حاصل کر لیا, آپ بڑی منزل کے مسافر بنے اور اس پر چل رہے ہیں. اور یوں کرتے کرتے آپ اپنی خوشی سے آپ اتنے خوش ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یوں کرتے کرتے آپ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں, آپ اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنی زبردست طریقے سے یہ ایکٹیویٹی کروائی ہے نا, میں خود حیران تھا کہ واقع ہی یہ جو سر قاسم علی شاہ صاحب, سر کاشف, یہ واقع ہی ڈگری کے بغیر کے سائیکالوجسٹ ہیں. سر یہ میں آپ کے اندر بالکل سر کاشف اور سر قاسم کی ایک پکچر دیکھ رہا تھا, اور میں وہی چیز آپ میں نوٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ بالکل سائیکالوجی کے قریب بھی نہیں جاتے, لیکن زندگی کے تجربات ان کو ایسا سکھا دیتے ہیں کہ یہ جو ڈگری والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور سر یہ ایکٹیویٹی کروا کے سر اب میرے اندر بھی اتنا ایک اطمینان اور سکون ہوا ہے نا کہ سر میں کچھ بتانے کے ابھی آپ کو قابل بھی نہیں ہوں. اور سر میں آپ کو گروپ میں بھی دیکھتا ہوں, گروپ میں آپ کو سنتا ہوں, آپ کی وائسز وغیرہ یا آپ کی جو یوٹیوب وغیرہ, تو میں آپ کو سنتا ہوں تو میں سر یہی نوٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے سر کاشف شہزاد اور پھر سر قاسم, انہوں نے اتنا ایک پھیلا دیا ہے اس چیز کو کہ اب ہر بندہ ہی اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ اگلے بندے کو کچھ نہ کچھ وہ سکھا سکے. سر بیسیکلی میں بھی سر کاشف کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں, اور سر کاشف نے ہی یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ تجربات جتنے مرضی آپ تجربات کرتے جاتے ہیں, جتنے زیادہ آپ تجربات کرتے جاتے ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کچھ نہ کچھ جتنے بندوں سے آپ ملتے رہتے ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیشہ سے انسان جس راستے پہ چلتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو سر یہ IOM کا پلیٹ فارم ایسے ہے سر, میں خود بھی کوشش کرتا ہوں یہاں
पे स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सिखाता ही रहूं, जो कि मैं भी सर कॉपी करता हूँ। मेरे में सर खुद कुछ भी नहीं है कि अल्लाह ने मुझे वैसे सलाहियतें दी हैं, लेकिन सर मैंने भी जो अपने असातिज़ा से सीखा है वही मैं इनको बता देता हूँ। सिंपली मैं इतना कासिद का रोल अदा करता हूँ। तो सर आपसे जो माशाल्लाह, कुछ बहुत खूब सुहेल साहब, जबरदस्त है। अल्लाह ताला आपका ये शौक, ये मोहब्बत कायम और दायम रखे। आपके लिए एक जुमला अर्ज करूंगा। मेरे उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब का फरमान है, मैंने उनको सुना था। कहते हैं कि बेटा जो उस्ताद का अदब करता है ना उसको फैज मिलता है, जो उस्ताद का अदब नहीं करता ना, फिर पाया चाहे कितना इल्म पढ़ ले, किताबें पढ़ ले, कुछ भी कर लेना, उसको फैज नहीं मिलेगा जब तक अदब नहीं करेगा अपने असातिज़ा का। तो मैं समझता हूँ कि जो सर काशिफ शहजाद साहब हैं, या मैं हूँ, या मेरे जैसे और बंदे हैं, या आप हैं, अगर हम कुछ किसी को दे रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हमारे असातिज़ा का सदका है और कुछ भी नहीं है, उनकी कर्म नवाजी है, ये उनका फैज है। बिल्कुल सर, वही सर मैं इनको बताता हूँ कि हम तो एक कंप्यूटर हैं। जैसे कंप्यूटर होता है ना, एक फैक्ट्री होती है या कोई भी बड़ी कंपनी होती है ना, तो उसमें एक बड़ा सर्वर होता है और बाकी सारे कंप्यूटर उसके साथ अटैच होते हैं। तो हम जी तो जी सर वो छोटे वाले कंप्यूटर हैं जो एक बड़े सर्वर के साथ अटैच हैं, तो हम आगे सर ये करते रहते हैं। लेकिन सर आपका जो लेवल है ना सर, वो बहुत अप कर गया, इंक्रीज कर गया ना, कि आप बेशक आप जिस लेवल पे भी चले जाए ना, जैसे कि सर काशिफ भी हमेशा से कहते हैं कि जो एक इंसान होता है ना, वो इंसान उस लेवल तक चला जाता है, उस फैज़याब, जब इंसान फैज़याब होना शुरू होता है ना, जब उसको पता चलता है कि मैं फैज़याब हो रहा हूँ या मैं फैज़याब होना शुरू हो गया, जी जाता है कि उसको खुद भी नहीं पता होता है। जैसे सर अब आप कह रहे हैं कि आपके ये टीचर्स का सदका है, लेकिन सर आपका फैज़याब सर आप हो रहे हैं और होना चाह भी रहे हैं। तो सर इसी तरह जैसे कि अभी सर आपकी देखिए ना आदत बता देती हैं। अभी आपने यहाँ पे बैठे-बैठे ही सर कासिम साहब की ना 3 बुक्स शो करवा दी हैं। तो मैं सर ये सोच रहा था कि अब ये 3 बुक्स जो हैं ये अब सर ने तो पढ़ ही ली होंगी। इसी वजह से अब ये सर हमें रिकमेंड कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि इंसान जब टीचर के पीछे, किसी मेंटोर के पीछे लग जाता है, तो इंसान फिर उस लेवल तक पहुंच जाता है जिस लेवल पे वो टीचर उसको लेके जाता है। तो सर बहुत खुशी हुई आपसे, आपकी ये बातें सुन के, आपका स्पेशली आज का लेक्चर सर मुझे जाती तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सर वैसे भी जब आप ग्रुप में, आप सर काशिफ के ग्रुप में भी ऐड हैं, तो वहां पे भी जब आप टेक्स्ट वगैरह करते हैं, सर काशिफ साहब बहुत सिखाते हैं, तो वहां पे भी सर इतना गौर नहीं किया था मैंने आप पे। मैं एक्चुअली मेरा ज्यादातर गौर सर काशिफ पे ही होता है, तो इतना गौर नहीं किया था। लेकिन सर आज आपने बहुत कुछ सिखाया सर, मुझे जाती तौर पे बहुत खुशी हुई है सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। अब आखिर में ये बात एंड करता चलूं, ये जो मैंने आपको किताब दिखाई अपनी तलाश, ठीक है, और ये जो स्लाइड है मैंने आपके साथ शेयर की, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता 2018 में सर कासिम अली शाह साहब की अपनी तलाश पेज 6 थी। ये उसी की स्लाइडें हैं जो बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं उनके लिए ही है। ये सर की तरफ से हमें फ्री मिली थी। जो मुझे सुन रहे हैं ये मेरी तरफ से उनको फ्री मिलेंगी। किताब भी मैं भेजूंगा पीडीएफ में, और ये स्लाइड है जिसको भी चाहिए, अगर वो अपने इसमें एरिया में, अपने इसमें इंस्टीट्यूट में, अपनी जगह पे कहाँ पे भी ये प्रोग्राम करवाना चाहे, तो ये पूरी की पूरी स्लाइडें मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगा। मैं जो आपकी टीम है, मिस समीन यूसुफ है और मिस मारिया नोशी ने, मैं इनके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप तक पहुंचा देंगी। जो भी सुन रहे हैं तो आप इससे भी फायदा उठाएं, जो भी चीजें आपको समझ में आए, हो सकता है तो इस फेज को आगे भी फैलाएं। अब मैं आपके सवालात के लिए हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। जी मेंबर्स, आप लोगों में जिसका क्वेश्चन है काइंडली वो हैंड रेज कर दीजिए, आपको अनम्यूट करवाया जाएगा। आपने अनम्यूट करके खुद का क्वेश्चन करना है। आज राइटिंग में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, अनम्यूट करके आप लोग क्वेश्चन करेंगे। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज कर लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि तजुर्बा सिखाते हैं ज्यादा से ज्यादा। आपने कहा कि 3 एक्टिविटीज ढूंढ लें जिसे प्रायोरिटाइज करके आप एक एक्टिविटी से फिर दूसरी तीनों को करें। सर काशिफ भी यही कहते हैं कि आप लोग तजुर्बा से सीखते हैं, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही, जो चीज आप, लेकिन आप उसके तरफ खिंचे चले जा रहे हैं, खिंचे चले जाए, हालांकि आप बोरियत फील करते हैं,
آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی، تو آپ اس کا ایکسپیرینس کیجئے، ایک دفعہ ایکسپیرینس کیجئے، پھر دوسری چیز کا ایکسپیرینس کیجئے، پھر تیسری چیز کا ایکسپیرینس کیجئے، جس چیز میں آپ کو مزہ آنے لگے، جس چیز میں آپ کا شوق ڈیولپ ہونے لگے، اس طرح بھی آپ اپنے پیشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ ان تجربات سے ہم تجربات بار بار یہاں پہ کر رہے ہیں، تو ان تجربات سے ہمارا کیا وقت ضیاع نہیں ہوگا، یا پھر سر کیا ہم یہ جو تجربات کر رہے ہیں ان میں ہمیں سر کتنا کس لیول تک سر سیکھنے کو ملے گا؟ بہت زبردست سوال کیا ہے سہیل صاحب، بہترین۔ تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ جو ڈفرینٹ ایکسپیرینس کرتے جا رہے ہیں اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے یا فائدہ ہے بھی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ مثال کے طور پر ابھی رات کا ٹائم ہے، آپ ایک کمرے میں جانے والے ہیں، اس کو تالا لگا ہوا ہے اور آپ کے پاس کی چین ہے، کی چین میں کم سے کم 8-9 چابیاں ہیں، تو اندھیرا بھی ہے، ٹارچ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو کیا کریں گے؟ آپ تالے کو پہلی چابی لگائیں گے، دوسری لگائیں گے، تیسری لگائیں گے، چوتھی لگائیں گے، آخر کار آپ اس تالے کی اصل چابی تک ضرور پہنچیں گے جو اس تالے کو لگے گی۔ ٹھیک اسی طرح یہ جو آپ ایکسپیرینس کرتے جا رہے ہیں ایک دن آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کام کے لیے بنے ہیں، آپ کے اندر جو پیشن ہے۔ جس طرح سرکار صرف سردار کا آپ کو پتا ہے، انہوں نے ماسٹرز انگلینڈ سے کیا ہے اور وہ کاروباری تھے، کاروبار کو چھوڑ کر اکیڈمی کو لیے۔ اگر میں اپنا بتاؤں نا تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں جو ہوں میرا بھی کچھ یہی سسٹم رہا ہے کہ میں نے مزدوریاں بھی کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے 8 سال پینٹنگ کی ہے، ڈرائنگ کی ہے، پینٹرز کا کام کیا ہے، اس کو چھوڑا ہے، چھوڑنے کے بعد دوبارہ ایجوکیشن مکمل کی ہے اور مکمل کرنے کے بعد عالم دین کا کورس کیا ہے جسے آپ مولوی صاحب کہتے ہیں یا اس طرح کر کے، یہ 7 سالہ مدرسے میں بھی پڑھا ہوں، اس کے بعد بھی الگ کورسز کیے ہیں، حتیٰ کہ میں ایم فل کے لیے داخلہ لے رہا تھا تو میں نے سوچا چلو بھائی ایم فل کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، ماسٹرز ہو گیا ہے، تو ایم فل کرنے لگا تو میں نے کتاب پڑھی، ہم نے بھی کیا تھا پی ایچ ڈی، یہ ڈاکٹر لطافت علی صاحب ہیں، انہوں نے لکھی تھی، اپنی روداد لکھی تھی، آپ بھی تھی لکھی تھی کہ بڑے ہی دھکے کھانے پڑتے ہیں ایم فل میں، یہ وہ۔ تو میں نے جب وہ پڑھی نا میں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ منع ایسے ایسے کرتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، میں نے پہلا اٹیمپٹ دیا ایم فل کا تو اس میں مجھے فیل کر دیا گیا، دوسرا اٹیمپٹ دینے والا تھا، میں نے سب کچھ ایڈمیشن لے لیا، فارم وغیرہ لے کے لایا، تو آپ کو سچ بتاؤں میں نے جو فارم کے پیسے 3000 شاید بھرے تھے، مجھے جتنا یاد ہے، وہ فارم میں نے واپس کیا۔ واپس کرنے کے بعد سہیل صاحب میں نے اس پروگرام کو اٹینڈ کیا جو 2018 میں سر قاسم علی شاہ صاحب کا ہوا تھا، اس کی فیس بھری، لاہور گیا اور اس کے بعد اب تک الحمدللہ میری 3 کتابیں پبلش ہو چکی ہیں، کئی آرٹیکل لکھ چکا ہوں، ابھی بھی لکھتا رہتا ہوں، خاص طور پہ سر قاسم علی شاہ صاحب کی کتابوں پر ٹرانسلیشن کا کام کر رہا ہوں جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ سر کی 2 کتابیں ٹرانسلیٹ کر چکا ہوں، 2 کتابیں انڈر پینڈنگ ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ایم فل کرتا تو جو سپروائزر تھے مجھے رلا دیتے، کہتے کہ یہ تمہاری چیز صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو میں خود سے کہتا ہوں کہ امتیاز تو بڑا خوش قسمت ہے کہ تمہیں سر قاسم علی شاہ صاحب جیسا استاد مل گیا کہ جس کی بدولت لکھنا تھا نا، لکھنے کا ایک آرٹ ہے وہ بھی سیکھ گیا، 3 کتابیں بھی پبلش ہو گئیں اور آرٹیکلز بھی آج کل لکھتا بھی رہتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ایم فل کرتا تو یہ اتنی چیزیں نہیں کر پاتا۔ تو اس وجہ سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں، الگ الگ چیزیں جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ جی سر بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن سر یہاں پہ ایک اور کوشچن ریز ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ارد گرد کا ماحول ہے، ہماری خاص طور پہ جو ہماری سوسائٹی ہے جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ جو آپ کا ماحول ہے وہاں پہ اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک کام پسند ہی نہیں آتا، یہ اپنا کام نیا شروع کر دیتا ہے، اس کو ایک جگہ یہ ٹکنے نہیں دیتا، یا کوئی کام یہ بالکل ہی اپنے کام کو بڑھاتا ہی جاتا ہے، بالکل ان پڑھوں کی طرح، بالکل ہی کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے۔ تو سر یہ ارد گرد کا ماحول ہمیں کیسے افیکٹ کرتا ہے اور اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟
ये भाई इनकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, हमारे उस्ताद कासिम अली शाह साहब एक मिसाल देते हैं, वो मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। लोग है ना, लोग मरते दम तक आपको नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बता, जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तब आपको तंग करते रहेंगे। किस तरह से, एक शख्स ने कश्ती बनाना शुरू कर दी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कश्ती नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अब उस बंदे ने बना कर दिखा दी कश्ती, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। उस बंदे ने मेहनत करके कश्ती में कुछ ऐसा सिस्टम बनाया, मोटर्स लगाए, तो उसने वो कश्ती चलाकर भी दिखाई। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। मैं कहता हूं, जो बंदा अपने काम से काम रखता है, लगा हुआ है, लोगों की नहीं सुनता, क्रिटिसिज्म जो करते हैं। सर कासिम अली शाह साहब से मैंने एक चीज सीखी है, आप सर कासिम अली शाह साहब के यूट्यूब पर जाएं या फेसबुक पेज पर जाएं, कितने ही नेगेटिव कमेंट आए होते हैं, कभी भी सर कासिम अली शाह साहब ने उन लोगों को कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो किसी ने सर कासिम अली शाह साहब से पूछा, सर आप उनको रिप्लाई क्यों नहीं करते? कि कहते, सर कासिम अली शाह साहब ने कहा कि मैं अगर इनको रिप्लाई करना शुरू कर दूं ना, तो फिर मेरा जो मकसद है ना, मैं उससे हट जाऊंगा, जो मैं कर रहा हूं उससे हट जाऊं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों को रिप्लाई करता रहा हूं, बस मेरा काम ही उनके लिए रिप्लाई है। जो मैं काम कर रहा हूं लोगों को नजर आ रहा है, और यूं करते करते आप देख लें कि सर का काम कितना आगे जा रहा है। तो यही कहूंगा सुहेल साहब कि लोगों से घबराना नहीं है, ये तंग करते रहेंगे, क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। लोग तो ऐसे हैं, उन्होंने नबियों को ही नहीं छोड़ा। हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, उनके कुरैश के सरदारों ने कितनी तनकीद की, कितनी परेशानियां दी, लेकिन हुजूर डटे रहे। आपका मशहूर वाकया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आए और कहा कि कुरैश वाले कहते हैं कि अपने भतीजे को समझाएं कि उसको अगर कोई सरदार बनना है तो सरदार बनाने के लिए तैयार है, उसको कोई मक्के की खूबसूरत औरत चाहिए, उसे शादी करवा देंगे, बस हमारे बुतों को कुछ ना कहें। तो जब ये पैगाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू तालिब लेके आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये चीजें बताई गई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी जुमला कहा, ये मेरे चचा जान, अगर ये मेरी एक हथेली पर सूरज लेके आए और दूसरी पर चांद लेके आए, मैं तब भी अपने मकसद से नहीं हटूंगा और उसको जारी करके रखूंगा, और ता हयात इसके लिए मेरी जान भी चले जाए मैं कुर्बान कर दूंगा, अपने मकसद से कभी नहीं हटूंगा। तो लोग कभी भी, मैं अपनी बात बताऊं, हता कि मुझे घर पे कहते हैं तू पागल है, पता नहीं क्या करता रहता है फालतू में। घर वाले, मुझे खुद मेरे भाई बड़े हैं, वो मुझे डिसहार्ट करते रहते हैं, लेकिन मैं परवाह नहीं करता। मैं अंदर की बात बता, क्योंकि मैं घर में वो वाहिद शख्स हूँ जो सबसे ज्यादा तालीम भी लिए, उसके साथ साथ खुद को जानता भी हूँ, घर पे पता भी है, क्योंकि हम बलोच खानदान से हैं। अजीब नमूने होते हैं हमारे खानदान के, तो आप समझ सकते हैं कि वो थोड़े ना, जो बलोच टाइप के बंदे होते हैं तो उनके थोड़े दिमाग घूमे होते हैं, उनको समझ में बातें नहीं आती। तो बस क्रिटिसिज्म मुझे भी घर पे होता रहता है, उसको दरगुजर करता रहता हूँ और अपने काम से काम जारी रखता हूँ। तो ये फेस करना पड़ता है, बस आपको अपने घर वाले भी नहीं छोड़ते। आपको कब मानेंगे? जब आप किसी मंजिल पर पहुंच जाओगे ना, यही घर वाले आपकी इज्जत करेंगे, यही घर वाले आपको रिस्पेक्ट देंगे, यही घर वाले आपको आपका घर का बड़ा बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब आप कोई मंजिल हासिल कर लोगे तब, उससे पहले आपको क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा सर। यहाँ पे एक और इशू आ जाता है ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं खास तौर पे, वो इस तरह करते हैं कि खासतौर पर हमारे जो गांव हैं, विलेजेस हैं ना, खासतौर पे मैं पंजाब की अगर बात करूं, सिंध में भी ऐसा होता है। तो जो अनएजुकेटेड होते हैं ना, तो वो इस तरह करते हैं कि जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई एडवोकेट बन गया, तो जब सर उस तरफ वो चले जाते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने कुछ अपने उस एरिया में ही रह के कुछ चीजें देखी होती हैं, तो वो अपने तजर्बात से उनके पीछे ही आपको एक किस्म का ना भेड़ चाल में लगा देते हैं कि आपने भी इंजीनियर ही बनना है, आपने भी डॉक्टर ही बनना है, आपने भी ये एडवोकेट ही बनना है, देखिए फलां का बेटा ये कर रहा है, फलां की बेटी है।
یہ کاری ہے. تو سر اب اس چیز کو کیسے ان لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچائی جائے کہ میرا پیشن پینٹنگ ہے, میرا پیشن ٹیچنگ ہے, میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, میں یہ نہیں کرنا چاہتا. تو اب سر پیرنٹس کو یا آپ کی ارد گرد کی جو لوگ ہیں, خاص طور پہ آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں, تو سر ان لوگوں کو یہ چیز کیسے سمجھائیں؟ ہم خود تو سر سیلف ڈسکوری کر لیں گے, ہم اپنا پیشن تو دریافت کر لیں گے, لیکن سر دوسرے لوگوں کو کیسے اس چیز کا ہم سمجھا سکتے ہیں, سر بتا سکتے ہیں؟ یہی سوال ہم نے سر قاسم علی شاہ صاحب سے اپنی تلاش میں پوچھا تھا, تو سر کی طرف سے جو جواب آیا تھا میں وہی آپ کو دوں گا کہ دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ گھر والوں کو کیسے سمجھائیں. کچھ گھر والے ہیں ان کو سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو خود فیصلہ کرنے. ایک کام کیونکہ پوری عمر آپ نے کرنا ہوتا ہے, آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے کام, جو بھی آپ فیلڈ چوز کرتے ہیں, جو بھی کیریئر چوز کرتے ہیں. اور دوسرا آپ کا ریلیشن شپ کس کے ساتھ رکھنا ہے, جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ کس کے ساتھ بلٹ رکھنا ہے. یہ زندگی کے دو عام فیصلے ہیں. ایک آپ کا کام فیلڈ, آپ کی جو آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ کریں اس معاملے میں یہی کہوں گا کہ کوشش کریں والدین کو ناراض نہ کریں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ ان کو بتائیں کہ دیکھو ابو امی آپ مجھ پر پیسہ لگا رہے ہو, آپ یہ کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کر لو, آپ کہہ رہے ہو یہ کر لو, تو اگر مجھے اس فیلڈ میں جانا چاہیے تو مزید یہ میرے لیے بہتر ہوگا. آپ کوشش کریں کہ ان کو سمجھائیں. اگر نہ سمجھیں تو پھر آپ پیار محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, کیونکہ پیار سے جو بھی چیز آپ کریں گے نا, ان کو کوشش کر کے آپ انسپائر کر ہی لیں گے. تو باقی آس پاس کے جو رشتہ دار ہیں جن کی آپ پر چلتی نہیں ہے, تو وہ اگر آپ کے والدین کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, آپ کو ان کو کہہ رہے ہیں, تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ابو دیکھیں نا, یہ میری زندگی ہے, یہ میری زندگی کے فیصلے, زندگی مجھے گزارنی ہے, مجھے جو کام کرنا ہے یہ مجھے کرنا ہے. تو آپ اس انداز سے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. باقی تو میں نے کہا نا, اب میں گھر کی بات بتا رہا ہوں. اب دو چھوٹے میرے بھائی ہیں. میں 2015 میں ماسٹرز کراچی یونیورسٹی سے کیا. واپس جب گھر آیا تو میں بکس کا شوق تھا, کم و بیش 1500 بکس میں اپنے ساتھ لایا تھا. تو گھر پہ جب میں نے الماری میں کتابیں رکھی تو چھوٹے میرے دو بھائی ہیں, لاسٹ ہیں, مجھ سے چھوٹے ہیں, تو انہوں نے میری کتابیں دیکھی, ان کو شوق تھا. اب ایک بھائی تھا جو میرا, وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دی, اور اس نے دوسرا بھائی اس کو دیکھتا تھا کتابیں پڑھتا ہے. کرتے کرتے ہوا یہ کہ اب انہوں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی نا, اب مجھ پہ الزام لگا دیا کہ لو بھائی خود تو خراب ہے, چھوٹے بھائیوں کو بھی خراب کر دیا, یہ پڑھائی کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں, ایکسٹرا کتابیں پڑھتے ہیں. مجھ پہ بھی تنقید ہوئی, لیکن الحمدللہ وہ دونوں بھائی کتابوں کے ریڈر بن گئے ہیں. وہ کتابیں 20 کتابیں انہوں نے پڑھ لی ہیں. جو بھی میں کتابیں منگوا لیتا ہوں دیکھ کر خود پڑھتے ہیں, خود مطالعہ کرتے ہیں. تو گھر میں ایک ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے, خود سے کچھ ایکشن لینے پڑتے تاکہ گھر والے انسپائر ہو جائیں. تو یہ اپنے طرف سے ایک سہیل صاحب کوشش کرنی پڑے گی, آپ کو یہ رسک لینا پڑے گا اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے. رشتہ داروں کو راضی نہیں کر سکتے آپ. تو آگے چلتے ہیں, جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے, وہ کسی نے ریز کیا ہوا ہے, ہاتھ ریز کیا ہوا ہے, تو ان کی طرف چلتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ سر. جی مس ماریہ نوشین کائنڈلی آپ کوشچن کر لیجئے, ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو آپ کوشش کیجئے شارٹ سے شارٹ کوشچن کرنے کی. مس ماریہ نوشین, جی مس. جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو سر میں آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کے پلیٹ فارم پہ, عزت بخشی آپ نے اور اپنا ٹائم دیا. ہم سب بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سر. میرا سوال یہ ہے, سوال کی طرف بڑھوں گی, وقت کیونکہ کم ہے. بڑی منزل کا مسافر, کیونکہ ہمارا ٹاپک کا بھی نام ہے, تو جو ایک بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ اپنے سفر کے دوران اپنی منزل کی کھوج میں مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے. تو اس کے راستے جیسے جیسے ڈیویٹ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ملٹیپل پاتھس آ جاتے ہیں, اور نہیں آتی کہ مجھے کس راستے کو اب اس میں سے چننا ہے اپنی منزل کے لیے. ایک تو پھر اس میں سے کچھ راستے اس کے لیے اپورچونیٹیز ہوتے ہیں, کچھ ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. تو وہ ملٹیپل پاس میں سے کیسے ایویلیویٹ کرے گا کہ میرے لیے کون سے راستے جو ہیں وہ اپورچونیٹیز ہیں اور کون سے راستے ڈسٹریکشنز ہیں. تھینک یو ویری مچ.
अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल किया है कि हम चलते जाते हैं, बड़ी मंजिल के जो मुसाफिर होते हैं रास्ते में उनकी रुकावटें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। सर कासिम अली शाह साहब ने अपनी किताब में इस बड़ी मंजिल के मुसाफिर में एक वाकया लिखा है, वो आपके सामने रखूंगा। एक यंग लड़का था, एक बाबा जी के पास गया। वो बाबा जी एक कब्रिस्तान में बैठे हुए थे और सर्दियों का मौसम था। तो बाबा जी के पास एक हफ्ते से जा रहे थे, उसके पास एक सवाल था, सवाल करते थे तो बाबा जी अपनी आंखों के इशारे से और हाथ से सिर्फ कहते थे कि सब्र करें, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, अब वो दिन भी आया कि वो बच्चे ने सवाल किया, 7वां दिन आया, एक्सक्यूज मी 8वां, सर जी, बाबा जी ने, टाइम पूरा हो गया क्या? सर जी टाइम बिल्कुल एंड पे, लास्ट मिनट चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ 10 मिनट के लिए अगेन ज्वाइन कर लें, 8 से 10 मिनट के ठीक है, लिए। कर लेंगे 10 मिनट के लिए कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। काइंडली आप लोग अगेन ज्वाइन कर लीजिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जी सर कंटिन्यू कीजिए काइंडली, थैंक यू। जी सर आप आंसर कर रहे थे मिस मालिया के क्वेश्चन। ज्वाइन हो गए? जी सर आप स्टार्ट कीजिए सर। जी मैं बता रहा था वाकया, सर कासिम अली शाह साहब ने अपनी किताब में लिखा है। तो उस बुजुर्ग के पास जब वो बच्चा आया, उसने सवाल किया कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ये हमारी जब बड़ी मंजिल के मुसाफिर हम बनते हैं तो रास्ते में ये रुकावटें क्यों आती हैं। तो उस बुजुर्ग ने कब्रिस्तान में बैठकर, शाम का टाइम था, सर्दी थी, तो उसने कहा कि बेटा देखो, जिनको लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, परेशानियां नहीं है, वो ये लोग सोए हुए हैं कब्रिस्तान में, ये सुकून से है, ना इनको प्रॉब्लम्स में है, ना टेंशन है, ना कोई परेशानी है। ये जो प्रॉब्लम्स और ये परेशानियां हमारे पास आती हैं, दरअसल ये इसलिए आती हैं, ये अलग अलग शक्लों में भी आती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें आजमाया जा रहा होता है कि किस तरह से बंदा इनको हैंडल करता है। वो 3-4 चीजें हो सकती हैं। हो सकता है वो जो परेशानियां आ रही हैं, आपकी माली परेशानियां हो सकती हैं, आपकी तनकीद की सूरत में हो सकती हैं, हो सकता है आप की कोई पसंदीदा चीज आपसे दूर कर दी जाए। ये इसलिए परेशानियां आती हैं ताकि आपको आजमाया जाए और आपको देखा जाए कि आप इन परेशानियों में किस तरह हल निकालते हैं। तो उस बुजुर्ग ने जब ये उस बच्चे को जवाब दिया ना, तो उसने सोचा कि अच्छा, ये प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं कि हमें इन प्रॉब्लम से निकाला जाए, क्योंकि कुरान शरीफ में आयत है फ़इन्नमल उसरे युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी जो मुश्किल आती है इसलिए वो हमारी आसानी के लिए आते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला हमें मुश्किलातें क्यों देते हैं, क्या वजह होती है? अल्लाह ताला दरअसल देख रहे होते हैं कि बड़ी मंजिल का मुसाफिर कौन है। जब हम मुश्किलातें हमारे सामने आती हैं तो हम इतने से दिखने में आते हैं और मुश्किलातें इतनी बड़ी हो जाती हैं, हमारे सामने इतनी बड़ी होती है, हमारे कद से भी दुगना हो जाती हैं। तो अब हमने उन मुश्किलात को जब फेस करना होता है, उनको पार करना होता है, तो मुश्किलातें हमारे लिए इतनी हो जाती हैं और हमारा कद मुश्किलातों से भी बड़ा हो जाता है। जो मैम का सवाल था कि हम जब अपनी लाइफ में जा रहे होते हैं, कुछ चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, रास्ते कुछ सही होते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हम किस रास्ते को चुनकर सही रास्ते पर जाएं? ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि बंदा जो खुद ब खुद कर रहा होता है ना, कुछ टाइम के बाद उसको एहसास होता है कि ये जिस रास्ते में मैं जा रहा हूं तो वो रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, खुद ब खुद पता लग जा शुरू हो जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैंने शुरू में आपको बताया 8 साल पेंटिंग की है, 8 साल के पेंटिंग, दोबारा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की है, दूसरा फेज, तीसरा फेज पढ़ाई के बाद मदरसे में पढ़ा 7 साल, उसके बाद फिर चौथा फेज मैंने क्या कहते हैं, फिर ये मोटिवेशन की तरफ, इंस्पायरेशन की तरफ, ट्रेनर की फील्ड की तरफ आया। तो ये खुद ब खुद मुझे पता चलता गया कि ये भी काम कर लिया, ये भी कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे जो सुकून मिलता है, मुझे जो इत्मीनान मिलता है, मुझे बोलकर मिलता है, किसी को सिखा कर मिलता है, किसी को समझा कर मिलता है, किसी को गाइड करके मिलता है।
کیوں ملتا ہے؟ میری لائف کا ایک لائف چینجنگ واقعہ ہے، وہ اس وجہ سے ملتا ہے۔ وہ کیا تھا کہ میں نے جب انٹر کیا تھا تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، میرا اپنا دکان تھا پینٹنگ کا، خود چلاتا تھا۔ میں نے ایک ٹریننگ اٹینڈ کی تھی 10 دن کی، اسلامی ٹریننگ تھی۔ تو وہاں پر ایک ٹیچر آئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ امتیاز بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سر میں نے پڑھائی کی ہے، انٹر کیا ہے، 3 سالوں میں چھوڑ دیا ہے، اور پینٹنگ کی دکان ہے، کام کرتا رہتا ہوں، الحمدللہ اچھا خاصا کما لیتا ہوں، میرے پاس ہنر ہے۔ تو کہا کہ بیٹا ایسا نہیں کریں، یہ آپ کی پڑھنے کی عمر ہے، آپ پڑھیں۔ تو میں نے کہا سر میں نہیں پڑھ سکتا، دل نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتی، پڑھائی میں نہیں پڑھ پاتا، یہ جو تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا تھا یہ پینٹنگ کی وجہ سے اردو انگلش لکھ لیتا ہوں، یہ ڈرائنگ اور پینٹنگ کی وجہ سے، بینر بورڈز کی وجہ سے۔ تو کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے مجھے اس 10 دن کی ٹریننگ میں ایک ٹاسک دیا کہ آپ نے سب کے سامنے تقریر کرنی ہے۔ میں نے کہا سر میں نے کبھی تقریر کی نہیں ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہ نہیں آپ نے کرنی ہے۔ انہوں نے مجھے تقریر لکھ کے دی، میں نے تقریر وہ کی، اور میرے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہو گیا، اچھا میں یہ کر سکتا ہوں۔ سر نے تھپکی دے کر کہا کہ دیکھا بیٹا امتیاز آپ نے کر لیا نا۔ تو اس دن مجھے یقین ہو سکتا ہے اگر میں اتنے لوگوں کے سامنے اسپیچ کر سکتا ہوں، جو ٹریننگ میں 300 کے قریب لوگ تھے، تو میں کیوں نہیں آگے بڑھ سکتا، کیوں نہیں اپنے خواب پورے کر سکتا۔ پھر وہ ساری چیزیں جو مجھے لگ رہی تھی کہ میں پینٹنگ ہی کرتا رہوں گا، اس کو چھوڑا، میں نے آگے بڑھا، پھر پڑھائی کی، پڑھائی سے آگے بڑھا، مدرسے میں پڑھا 7 سال، اس کو چھوڑا، اب جا کے نقطہ نظر یہاں پر پہنچا ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں رہنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، کیونکہ میری کسی نے مدد کی تھی، اب مجھے بھی ٹھیک اسی طرح لوگوں کو امید دینی ہے، مایوسیوں سے نکال کر اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، پیار کے ذریعے ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو راستہ دکھانا ہے، تاکہ وہ بھی خود کی مایوسیوں سے نکل کر بڑی منزل کے مسافر بن سکیں۔ اب میرا نقطہ نظر یہاں تک پہنچا ہے۔ تو میں کوشش یہی تھی میری کہ خود کو جانوں کہ میں کیا ہوں۔ تو میں نے جانا، مجھے پتا چلا کہ مجھے اس فیلڈ میں رہنا چاہیے، یہ سارا میرا سفر تھا۔ تو آہستہ آہستہ آپ کو بھی مین ریئلائز ہو جائے گا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ جستجو ہوگی، انشاءاللہ تعالی خود بخود اندر سے آواز آئے گی کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تقریباً اس کا جواب مل گیا۔ اگر کوئی کمی پیشی ہے تو مزید آپ وضاحت کر لیں جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، سلامت رہیں۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، خصوصاً جب آپ نے ایکٹیویٹی کروائی تو وہ جیسے جیسے آپ جس مرحلے سے گزار رہے تھے تو منہ پہ اسمائل بھی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی کوئی انگلی پکڑ کے وہاں پہ لے گیا۔ تو جیسے سر سہیل فرما رہے تھے، آپ واقعی آپ نے استادوں سے سیکھا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے آپ کو، اور انسانیت کی خدمت کریں آپ، اور زیادہ خدمت کریں۔ اللہ توفیق دے آپ کو، اور آپ سے لوگ مستفید ہوتے رہیں، ایسے ہی میری دعا ہے۔ صدا سلامت رہیں، صدا سلامت رہیں، اور کامیاب کرے اللہ آپ کو۔ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آئی ایم کو عزت بخشنے کا۔ بہت شکریہ انوشین صاحبہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی یہ محبتیں ہیں۔ جی نیکسٹ کسی کا سوال ہو تو آگے بڑھتے ہیں۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو کائنڈلی ہینڈ ریز کر لیجئے۔ سر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو اگر آپ کو کچھ کہنا چاہیں تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، کیونکہ اب میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو 10 منٹ کی تھی، تو آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو، نہیں تو پھر ہم اپنے فائنلی اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ بس یہی کہوں گا کہ آپ جنہوں نے یہاں پہ اٹینڈ کیا، امید کرتا ہوں کہ میں نے جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ